السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیوں اپنا وظیفہ المدد یا غوث پاک، سنیوں اپنا وظیفہ المدد یا غوث پاک۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں آپ غصہ ہیں کیا مجھ سے؟ کم کر دیجئے، ہم اتنے کو سنا سکتے، ٹینشن نہیں۔ سنیوں اپنا وظیفہ المدد یا غوث پاک، رنج و غم کا ہے مداوا المدد یا غوث پاک، رنج و غم کا ہے مداوا المدد یا غوث پاک۔ پہلے یوں ہی سنیں نا، پھر ہم دلیل آپ کو دے دیں گے، اور پھر اپنا دل ساتھ ساتھ لے کر آپ چاہیے۔ سنیوں اپنا وظیفہ المدد یا غوث پاک، یہ غوث الورا کانفرنس ہے نا، سلطان العارفین، امام زماں، غوث زماں، قطب زماں، محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی سے منسوب یہ جلسہ ہے۔ یہ ولی بھی ان کے ہیں، جتنے بھی ولی آئیں گے صبح قیامت تک سب کو ولایت انہی سے اب ملے گی۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے تک، ظہور سے پہلے تک، ان کا پورا کام غوث پاک ہی کریں گے۔ غوث زماں، امام زماں، اسی لیے میں نے کہا ہے سنیوں اپنا وظیفہ المدد یا غوث پاک، رنج و غم کا ہے مداوا المدد یا غوث پاک۔ تجھ کو حاصل ہے شرف محبوبیت کا اس لیے، تجھ کو حاصل ہے شرف محبوبیت کا اس لیے، ہو گئے غوث البرایا المدد یا غوث پاک، ہو گئے غوث البرایا۔ جو خدا کا محبوب ہوتا ہے نا، مخلوق اس کی ہو جاتی۔ سورہ مریم کی لاسٹ ٹائم فرسٹ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے واضح فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ دنیا میں بھی اللہ والے ہیں، آخرت میں تو ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ جب تک وہ ہیں، یعنی قیامت سے پہلے تک، ساری مخلوق کو ان کے آستانے سے جوڑ دے گا، دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ ولی سے اٹریکشن، ولی کی طرف توجہ، یہ آپ کی محنت نہیں ہے، خدا کا فضل ہے۔ یہ آپ کی محنت نہیں ہے، خدا کا فضل ہے۔ تجھ کو حاصل ہے شرف محبوبیت کا اس لیے، ہو گئے غوث البرایا المدد یا غوث پاک۔ تو ہے عبد قادر، یہ ذرا جملے پہ غور کریں آپ، تو ہے عبد قادر مطلق، یہ قادر مطلق سے خدا مراد ہے۔ تو ہے عبد قادر مطلق، مگر قادر بھی ہے۔ تو ہے، اسی کو کہتے توحید اور رسالت کا لطیف فرق اور ولایت کا لطیف فرق دیکھیے۔ تو ہے عبد قادر مطلق، مگر قادر بھی ہے۔ تو نے مردے کو جلایا المدد یا غوث پاک، تو نے مردے کو جلایا المدد یا غوث پاک۔ ہو گیا 12 برس تھا ڈوبتی کشتی کو سن، ہو گیا 12 برس تھا
डूबती कश्ती को सुन, मुजदे रजात सुनाया, अल मदद या गौसे पाक। लौटाना, रजत माने लौटाना, मुजदे माँ को कहा ना रुको रुको, मुजदे रजात सुनाया, अल मदद या गौसे पाक। और ये सही मुस्लिम की हदीस पाक से और दिगर किताबों में भी, सही मुस्लिम में हजरत उमर की रिवायत है। जरा तवज्जो सुने और गौसे पाक को पहले समझिए, फिर गौसे पाक की समझिए। पहले गौसे पाक को समझिए, फिर गौसे पाक की समझिए। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, ये तब बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। आप अहम है इसलिए कम है, जो कम है अहम है नहीं कहा मैंने, आप अहम है इसलिए कम है। ये पैमाने कुरान है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हाँ, कलील जमात को गलबा होगा, ये अल्लाह का इज़्न हो चुका है, अल्लाह का इज़्न हो चुका है। आप जरा देखें, ये जो कह रहा हूं, सही मुस्लिम की हदीस पहले सुने। हजरत मशहूर, जल्दी से बोलकर कह दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को वसीयत फरमाई, उमर, यमन से एक वफ्द आएगा, आमिर नाम है, उवैस इब्न आमिर, हजरत उवैस करनी को उवैस इब्न आमिर है, उनका नाम उवैस होगा। वो पूरे जिस्म में बर्स था, लेकिन अब जो है खत्म होकर के सिर्फ हाथ में उसका दाग है। नबी का इल्म गैब देखिए आप। अब इससे समझिए कि हजरत उवैस करनी सहाबी नहीं है, नबी का जमाना पाए लेकिन माथे की आंख से देखने का शर्फ नहीं है। लेकिन नबी बता रहे हैं कि हाथ में एक दाग होगा, बर्स का थोड़ा सा बाकी होगा, ये निशानी बता रहे हैं। सुनो उमर, अगर तुम उनसे मिलो तो अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। जरा इसीलिए कहा गौस को पहले समझिए, फिर गौस की समझिए, गौस को समझिए। गौसे पाक किसी सहाबी से अफजल नहीं है, क्योंकि वो सहाबी नहीं है। सहाबी से कोई गैर सहाबी अफजल नहीं है। आप समझ रहे हैं जुमला? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम पहले समझ, उनकी जात को समझिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब को वसीयत फरमाया, और दूसरी रिवायतों में हजरत अली की भी आप सुने होंगे कि अली और उमर दोनों को नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिरका दे करके, मैं चूंकि एकदम ऑथेंटिक किताब का मुताला करके बोल रहा हूं, ये सही मुस्लिम में हजरत उमर है और दीगर सीरत की किताबों में हजरत अली की भी रिवायत है। बहरहाल उमर इब्न खत्ताब भी खलीफा राशिद में से दूसरे खलीफा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहते हैं कि अगर तुम मुलाकात करो, तुम मिल लो, तो उनसे मग़फ़िरत की दुआ करवाना। आप जरा यहीं पर थोड़ी सी मतलब करीब रह करके सोचिए, जिस सहाबी की शान ये है कि शैतान उनसे भागता है, खलीफा राशिद हैं, हुजूर के ससुर हैं, कुरान ने मुज़दए मग़फ़िरत अजरे करीम खास तौर से सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 में देखें, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, अबू बकर और उमर ही के लिए उतरी है। इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, ये क्या है? रोकवा दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, मग़फ़िरत भी गारंटेड है, अजरे करीम भी, अजरे अजीम भी गारंटेड है सहाबा के लिए, बिलखुसूस हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की। जरा इधर देखिए आप, मैंने कहा है गौस को समझिए, फिर गौस की समझिए। जब आप सजाए हैं तो आप जरा सज धज कर रहिए आप, ठीक है? और वली के आस्थाने पर हैं, बेअदबी हुई तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि सब कुछ चला जाएगा, मिली सो भी चली जाएगी। अदब का मकाम रखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 151 में अल्लाह पाक फरमाता है, वली के आस्थाने के आजू बाजू इधर उधर के 100 घरों के लोगों से बला बत्तर को दूर फरमा देता है। और आप तो बिल्कुल करीब है यार, 100 घर की दूरी का भी मसला नहीं है। जो भी बलाएं आने वाली होंगी ना इंशाअल्लाह, कुरान गलत नहीं है, हम गलत हैं, हम गलत हो सकते हैं, हमें नहीं मिलेगा तो हमारा करप्शन है, हमारे अंदर कमी और खता का उन्वान है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों। अरे खता में हम कोई कमी नहीं करते हैं, हमारा तो ये लेवल हो चुका है यार। खैर, तो जरा जो सुने आप, वली के आस्थाने पे हैं और गौसे पाक को मैं पहले समझा रहा हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब साहबी रसूल खलीफा राशिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब सबसे पहले अगर देखें तो वही है मुखातब। ए ईमान वालों, जिनको अल्लाह पाक ईमान की गारंटी, बख्शिश की गारंटी, अजर करीम की गारंटी, रिजा की गारंटी, खुशनुदी की गारंटी, सेलेक्टेड गारंटेड कौम, लोग, नफूस कुदसिया जो भी चाहे। अब आप सोचें,
मगर हजरत उमर इब्न खत्ताब को क्या कहते हैं कि अगर उवैस इब्न आमिर से मुलाकात हो, सलाम भी कहना, और खिरका वाले भी रिवायत है मगर वह उस सही मुस्लिम में नहीं है, दुआए मगफिरत करवाना, जरूरत क्या है बताइए? मगफिरत तो हो चुकी है ना। यही को समझिए, यही प्लस पॉइंट है हमारा और आपका। कुछ लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि भाई अल्लाह के वली हैं, नमाज पढ़ के, हज करके, ज़कात दे के, नेक बन के, मुत्तकी, आप भी बन सकते, तो वो अल्लाह के वली बन गए, आप भी बनो ना। नहीं, हर कुछ मेहनत से नहीं, कुछ खुदा के हुक्म और कुछ रसूल के हुक्म से, और वो ऐसे हुक्म जो अमल से ताल्लुक ना रखे। उमर इब्न खत्ताब ने सवाल नहीं किया, या रसूल अल्लाह मेरी मग़फ़िरत पर रिमार्क कर रहे हैं आप, मेरी मग़फ़िरत हो चुकी है, मैं मग़फ़िरत क्यों मांग तलब करूं उनके वसीले से, उनको क्यों मंगवाऊं? और वो सहाबी भी नहीं है, मैं तो खलीफा राशिद हूं। समझिए वलियों का आस्ताना, चाहे वो वली छोटे हो या बड़े हो, जिस भी वली से आपका गुजर हो, अदब का नजराना पेश करते हुए जाना प्यारे। ये खुदा की शान, ये तौहीदी नुक्ता है और ये रसूल का नुक्ता है। उमर इब्न खत्ताब को भेजकर, मौलाए कायनात को भेजकर ज़हन दिया है कि उवैस ना उमर से अफजल है, उवैस ना अली से अफजल है, मगर मैं इन दोनों को भेजकर ज़हन दे रहा हूं कि वली वली होता है, अल्लाह का वली वली होता है। आस्ताने से जुड़ना ये होना चाहिए पैमाना, बाकी तुझे क्या देना है वो मैं जानता हूं, तो क्या देना है वो मैं जानता हूं। तो हजरत उवैस के पास किनको भेजा? हजरत उमर को और हजरत अली को। सीरत गौसे आजम अल्लामा फखरी पाकिस्तान के हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मशहूर आलिम हैं। उसमें जो एक रिवायत है उसी को मैंने अख्ज़ करते हुए, ये दोनों जरा ध्यान दीजिएगा। पास जाएं जिनके फारूको अली बहरे दुआ, ये इतना गाढ़ा शेर है ना हजरत, कि अगर जाहिल किस्म के लोग हो ना, पट फतवा लगा देंगे। अरे मैं फतवा की बात कर रहा हूं, मौलाना कमर अहमद अशरफी को जान रहे हैं? जब ये मैंने शेर लिखा ना तो अरे तौबा कीजिए तौबा कीजिए, जब मैं किताब दिखाया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा ये क्या करिए, तो अफजलियत का उन्वान गैर सहाबी को, सहाबी पर फजीलत दे दिया आपने। मैंने कहा देखिए मैं तो खुद यही सोचने पे हूं, लेकिन नहीं, इससे जो ज़हन मिला है, क्या हजरत ज़करिया नबी नहीं है? बेशक नबी है, लेकिन मरियम के आस्ताने पर दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जो मरियम वलिया है, नबिया नहीं, औरत है, तो वो नबी नहीं हो सकती। कुरान कहता है आयत नंबर 136 में सूरह आल इमरान में, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, वहां पर दुआ किया ज़करिया ने अपने रब से। ये वहां कौन है? वो आस्ताने मरियम है। हालांकि नबी है, कहीं पर भी दुआ करें तो नबी है, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं? जहां पर भी वो दुआ करें उनकी दुआ कबूल होगी। नबी है, सिलेक्टेड है, लेकिन आस्तानों से जोड़ने की जो तौहीदी चीज है या तौहीदी लकीर दी है, तौहीदी उन्वान दिया है रब्बुल आलमीन ने, सुनो ज़करिया की सुन्नत है, बड़ा छोटा नहीं, जो भी मेरा वली है, जो भी मेरा महबूब है, सबसे मिले जुले रहो, सबके आस्ताने से जुड़े रहो। दुआ तो हर जगह कबूल करूंगा, लेकिन आस्ताने से दुआ ज्यादा कबूल होती है, गारंटेड कबूल होती है। और हुई भी। सुनिए कितनी दुआ किए होंगे, यहां तक कि दुआ का जब ढंग देखे ना हजरत ज़करिया के हवाले से, तो इन हड्डी ये हो गई है, ये कमजोर पड़ गई है वगैरह, सूरह मरियम में इसका जिक्र पूरी तफसील से है। यानी वो दुआ कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन मकबूलियत का परवाना कहां मिला? जब आस्ताने मरियम पर दुआ किया तो कुरान उसी के बाद कहता है, फनादतुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, काइमुन युसल्ली फिल मिहराब इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। ज़करिया अब दुआ कबूल कर लिया है तेरी, फरिश्तों के जरिए से भेज करके बशारत दी कि अब तुम्हें बशारत हो, और बेटा दे रहा हूं, नाम भी बता दे रहा हूं, उनका नाम यहया है। सुभान अल्लाह, देखा आपने? तो वलियों के आस्थानों से, उनके वसीलों से, उनके पास जाकर के रब से दुआ करना, ये तो खुदा का खुद मकसद है, खुदा का खुद मंशा है। नबी को भी बताइए आप, यहां पर फिर भी नबी से अफजल नहीं है मरियम, ये अकीदा रखे आप। जुड़ने का उन्वान दिया है, वली कैसे भी हो उनसे जुड़ो, वो तनकीद के उन्वान नहीं है, वो तस्दीक के उन्वान है, वो बिलीव के उन्वान है, वो मानने के उन्वान है, उनको माना जाए। पास जाएं जिनके फारूको अली बहरे दुआ। अब जरा गौर कीजिए, जब ये आए थे ना, तो आने के बाद जो पता बताया, सब पता बता रहा, लोगों ने बता दिया हाँ वहां पर वो झुके हुए हैं, सजदे में हैं, ऐसा देखा। जब तो सलाम किया, सलाम करने के बाद
जो भी देना था दे दिया वगैरह वगैरह। अब चलने लगे तो खिरका, अच्छा खिरका भी देना, अच्छा। फिर जोर जोर से आवाज देने लगे। वो सजदे में थे हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब जोर से आवाज दिया, चेहरा उठाकर कहते हैं थोड़ी देर और रुक जाते तो पूरी उम्मत बख्शी चली जाती। अरे बाप रे बाप, ये जुमला बोलना था कि एक जुमला आवाज आती है, गैर से आवाज आती है। ये सीरत गौसे आजम जो अल्लामा फखरी की किताब है, मैंने पाकिस्तान के हवाले से, बड़ी ऑथेंटिक। अब जिनको नहीं मानना है वो ना माने, सही है कि नहीं? मगर ये सही मुस्लिम की तो मानेंगे कि हजरत उमर इब्न खत्ताब वाला जो उन्वान है। खैर, बाबो जिक्रिल यमन में उवैस करनी ही के बाब में ये हदीस मनकूल है। कहा कि बख्शी चली जाती है, गैब से आवाज आती है, नहीं, आधी उम्मत तेरी वजह से और आधी उम्मत नस्ल मुस्तफा में एक आएगा जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा, उनकी वजह से बख्शूंगा। अरे बाप रे बाप, कुछ जुमला समझे आप? और जब ये जुमला सुना तो उवैस करनी अपनी वलायत वाली शान रखते हुए कहते हैं वो कौन है, वो कैसे हैं? हाँ, मुझे पूरा लेवल बताएगा, ये है, ऐसे हैं, ऐसी शान, ऐसे शान वाले, ऐसी शान वाले। तो उन्होंने खुद कहा, अच्छा उनमें एक जुमला ये भी कहा था कि वो खुद कहेंगे कदमी आला कदमी अला कुल्ले रकबत वलीगिल्लाह, औ कमा काले कि हर वली के गर्दन पर मेरा कदम। कहा था ना, हर वली के गर्दन पर मेरा कदम, वो कहेगा और सारे वली खुद को झुकाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब जब पेश किया, हातिफ गैबी से आवाज आई, ऐसी बात है, ऐसी बात है, इतना लेवल, इतना स्टेटस है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो उसी वक्त हजरत उवैस करनी ने भी कहा फिर मैं भी गर्दन झुकाता हूं। अब जरा लतीफ शेर सुनिए और तौहीद के हवाले से सुनिए, इधर उधर नहीं, जरा रिवायत के हवाले से बयान कीजिए और दिरायत के साथ बयान कीजिएगा। पास जाएं जिनके फारूक अली बहरे दुआ, खुद उन्होंने सर झुकाया, अलमदद या गौसे पाक। दो मिसरे में कहां से कहां तक ला दिया है मैंने, सही मुस्लिम से लेकर के कहां से कहां। पास जाएं जिनके फारूक अली बहरे दुआ, और दुआ भी वो नहीं कि ये बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं, मगफिरत का उन्वान है जो सबसे आखिरी। मगर जब उन्होंने लेवल सुना अब्दुल कादिर जिलानी का तो खुद उन्होंने सर झुकाया, अलमदद या गौसे पाक। फिर भी अकीदा बता दो, सहाबी अफजल है गौसे पाक से, और सहाबी अफजल है उवैस करनी से, और गौसे पाक से उवैस करनी अफजल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेवल, स्टेटस, ये झुकाव ये इसलिए नहीं है। अच्छा, इसीलिए इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला है, इमाम अहले सुन्नत से किसी ने सवाल किया था कि गौसे आजम अफजल है या इमाम आजम अफजल है? तो आपने इतना अच्छा जवाब दिया कि जरा अकीदा लीजिए, सहाबियत हुई फिर ताबइयत, सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस उसके बाद तू वासिल है या गौस। क्या बात, कामिल है या वासिल है क्या? नहीं, उसके बाद, यानी सहाबा और ताबईन के बाद ही, यही वो शेर का भी मतलब है, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं आका मेरे दिल में तेरा, सुभान अल्लाह, यही मतलब है। अब वहां तक ना चले जाइएगा, सहाबा तक या ताबईन तक, समझ रहे हैं ना आप? ये बात बड़ी अहम है, जो लतीफ है। ये गौस को पहले समझिए, अब्दुल कादिर को समझिए, फिर की समझिएगा। करामत ये गौसियत नहीं है, तौहीद और रिसालत की रियलिटी ये है गौसियत, ईमान की कामलियत ये है गौसियत, और तकवा का आलम मेयार ये है वलायत उनकी। वह करामत नहीं है। करामत तो उन जो जिस घोड़े पर वो चढ़ते हैं ना, वो घोड़े के धूल है, उनके कदम के धूल हैं, उनके भी कदम के नहीं, कदम के धूल हैं, वो यूं ही है। तकवा और ईमान ये है मेयार। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं ही नहीं है। सोचे, खुद उन्होंने सर झुकाया, अलमदद या गौसे पाक। आसान नहीं है, जरा और आगे देखें, तेरे कांधे पर। अच्छा, ये भी देखिए आप, फतावा मुस्तफविया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि क्या ये रिवायत सही है कि शबे मेराज गौसे पाक के कांधे पर रख करके ऊपर गए? तो फतावा मुस्तफिया जब मुताला किया, सीने से लगा, सुभान अल्लाह, इतना मजा आया। हजरत जवाब देते हैं, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज, मुमकिन चीज पर कादिर है, और ये मुमकिन में से है, ये मुमकिन में से है। बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। रूहों से लिया ना जवाब, इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुरूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम, कोई पैदा नहीं हुआ और आलम अरवाह में लिया ना, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जवाब दिया। तो उसी के मंजर में ये शेर सुने आप कि तेरे कांधे पर ये सच है,
था कदम असरा की रात, तेरे कांधे पर, ये सच है, था कदम असरा की रात, तेरा कांधे पर, ये सच है, तेरे नहीं, तेरा आगे कदम उसका, तेरा कदम, ठीक है, तेरा कांधे पर ये सच है, कांधे से मुराद औलिया अल्लाह, तेरा कांधे पर ये सच है, था कदम असरा की रात, नजदिया फिर भी न माना, अल मदद दिया गौसे पाक, नजदिया फिर भी न माना, अल मदद दिया गौसे पाक। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को ये बोलते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, यहां पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर लाते हैं, जबकि वो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि झूठ मुहाल बिज़ात है, अल्लाह पाक है, और जो पाक होगा झूठ नापाक है, इसलिए अल्लाह के लिए झूठ बोलना मुहाल है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जुमा वहां ऐड ही नहीं कर सकते, क्यों? बेशक अल्लाह मुमकिन चीज पर कादिर है और झूठ मुहाल है, इम्पॉसिबल उन्वान है झूठ का। अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह भी बोल रहे हो यार और कह रहे झूठ बोल सकता, सुभान अल्लाह का माना ही होता है अल्लाह हर चीज से पाक है, हर आयब से पाक है, अल्लाह हर आयब से पाक है, तबर्री अन कुल्ली सूइन, हर बुराई से पाक है, और झूठ बुराई है कि नहीं? झूठ बुराई है ना, और जब झूठ बुराई है तो अल्लाह उससे भी पाक है ना, तो फिर सुभान अल्लाह क्यों पढ़ रहे हो? तो जब सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब झूठ से पाक बोल रहे, और जब झूठ से पाक बोल रहे हैं तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मतलब नहीं समझे। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये चीज से मुराद मुमकिन है, मुहाल नहीं है, मुमकिन है। ये आला हज़रत ने इसकी तहकीक भी फरमाई, आप देखेंगे कंज़ुल ईमान में तो आपको मालूम होगा। तेरा कांधे पर ये सच है, था कदम असरा की रात, नजदिया फिर भी न माना, अल मदद या गौसे पाक। और आप जरा सुनिए, जिस तरह नाना कदम से सर तलक है मोजज़ा, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहान, सूरह माइदा आयत नंबर 174। ये लोगों, ये गिनती वाले मोजज़ा वाले नहीं है, ये सरापा मोजज़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह नाना कदम से सर तलक है मोजज़ा, तुम करामत हो सरापा, अल मदद या गौसे पाक, तुम करामत हो सरापा, अल मदद या गौसे पाक। अब जरा अकीदा सुनिए, इहदिना और इस्तईनु और इब्तगू से है आया सूरह फातिहा आयत नंबर 5, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधी राह चला, और वहीं पर कह रहा है उन लोगों की राह चला, उन किताबों की राह नहीं कहा है, उन लोगों की राह चला जिन पर तूने इनाम किया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इनाम मैंने किया नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर और औलिया अल्लाह यानी सालिहीन पर, ये सब बता दिया अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह। तो इहदिना आयत नंबर 5, इस्तईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र अल्लाह भी नहीं है, सलात अल्लाह भी नहीं ना, अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह भी नहीं, अल्लाह की सिफत भी नहीं, गैरुल्लाह है, समझिए उनकी जबान में कह रहा हूं। तो इहदिना और इस्तईनु और इब्तगू या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये जाकिर नालायक बोलता है 26 जगह में वसीला हराम है, कहीं हराम नहीं है, अलबत्ता एक जगह में हलाल की वजाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला ढूंढो, वो हलाल होगा तब मैं ढूंढने कह रहा अल्लाह ताला, ढूंढने किसको कह रहा? वसीला ढूंढो, वसीला ही का लफ्ज़ है, अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। तो इब्तगू ये भी कुरान पाक की आयत, इस्तईनु ये भी कुरान पाक की आयत, और इहदिना ये भी कुरान पाक की आयत, और तीनों से अहले सुन्नत व जमात का तसव्वुर है कि नहीं? वलियों का आशकारा उन्वान है इहदिना और इस्तईनु, इब्तगू से है आया अहले सुन्नत का अकीदा, अल मदद या गौसे पाक, अहले सुन्नत का अकीदा अल मदद या गौसे पाक। और सूरह तौबा आयत नंबर 119, सुभान अल्लाह। अरे गौसे आला हजरत के हवाले से हमारा दावा है, सुभान अल्लाह है ना, दावा है ना कि हर शेर कुरान से, हर शेर कुरान हदीस से है कि नहीं? इसीलिए हदायत बख्शिश भी मसलक के आला हजरत में है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप जरा एक दीवानगी में न सुनिए, हकीकत में सुनिए। मैं गौसे पाक को समझाने जा रहा हूं, समझिए, कुछ लेकर जाइए, सब कुछ लेकर जाइए। रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो डरना तो तुम्हें अल्लाह ही से है, लेकिन रहना सच्चों के साथ है। तर्जमा का अंदाज सुने आप डरना तो तुम्हें अल्लाह ही से है, लेकिन रहना सच्चों के साथ है। जिद मत करना कि ईमान वाले हैं हम,
तकवा वाले हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ईमान और तकवा की सलामती चाहते हो तो सोहबत वलियां लाओ। सुभान अल्लाह, कुनू मासादिकीन, ये अल्लाह पाक का हुक्म है। इसलिए फरमाया, इसलिए जरा शेर समझे कि हमको तो रब ने कहा कि साथ सच्चों के रहो, हमको तो रब ने कहा कि साथ सच्चों के रहो। और गौसे पाक की सच्चाई का आलम तो आप जान रहे हैं कि वो चोरों के सामने सच बोलते हैं तो अब्दाल बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। ये तो मशहूर है ना, मैं आगे इतना नहीं, मैं नुक्ता दे के चला जा रहा हूं, समझे। हमको तो रब ने कहा कि साथ सच्चों के रहो, सिद्क है तेरा सरापा, अलमदद या गौसे पाक। सिद्क बोले तो सच्चाई, ठीक है, सिद्क है तेरा सरापा, अलमदद या गौसे पाक। अरे और मांग के तो देखो यार, तनकीद करोगे तो कहां से होगा, व्हाट नॉनसेंस वाली ये सब बातें करोगे तो कुछ नहीं। सेंस और थिंकिंग नहीं, बिलीव का उन्वान ये है, बेदेखे मानो। सुभान अल्लाह, बेदेखे मानो। हम अपने बाप के बेटे, हम अपनी मां के बेटे, कभी डीएनए तहकीक कराए? बोलिए, कमाल है यार। एक ऑर्डिनरी, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की पे है, करा सकते थे ना, एक बाल चुरा लेते अब्बा का, एक बाल चुरा लेते अम्मा का, डीएनए तहकीक करा लेते, लेकिन नहीं, बिलीव के खिलाफ है, एतमाद के खिलाफ है, तस्दीक के खिलाफ है। इसलिए हम बेदेखे माँ बाप को माँ बाप मान लिए हैं, बेतहकीक के हम माँ बाप को माँ बाप मान लिए हैं। आप जरा समझिए, माँ बाप के लिए हम तहकीक नहीं किए, बगैर डीएनए तहकीक के हम मान लिए माँ बाप से अफजल है मेरे गौस। सुभान अल्लाह, माँ बाप से अफजल है मेरे गौस, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान है। अब जरा सोचिए, तो मांगने वालों को ही मिलता है सदका गौस का। सुभान अल्लाह, मांगने वालों को ही मिलता है सदका गौस का। आप जरा समझ रहे हैं जुमला? वो लोग मांगते ही नहीं, खाली मांगने वालों पर एतराज करते। सही है, कहीं को जाते जी, कहीं को जाते जी। अब आप लोग भी एक जुमला बोल दे रहा हूं भाई, काहे को जाते? टेंशन से पूछ रहे हो या अटेंशन से पूछ रहे हो? अगर टेंशन से पूछ रहे हो तो आई एम सॉरी, उतना टाइम नहीं। और अटेंशन से पूछ रहे हो तो दलील दूंगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसलिए हम जानते हैं कि बेवकूफ है। मीना में आप जाते हैं, खुदा करे आप चले जाएं हज करने के लिए, और वहां बेदेखे कंकर मारते हैं, किसको? शैतान को है। और इबादत नहीं मारे तो हज ही नहीं होगा। अम्मा क्या बात है। तो बीज ये है, हजरत इब्राहिम तो देखे थे ना भाई, तुम देखे क्या? अच्छा, इब्राहिम मारे थे ना, मर्द हैं, औरत लोग क्यों मार रही हैं? सिर्फ हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करें, लेकिन नहीं, कुछ बस बिलीव का उन्वान तहकीक नहीं है, तस्दीक है। सुभान अल्लाह, मानने का उन्वान है। तो अटेंशन से अगर पूछ रहे तो दलील सुनो, और टेंशन है तो जाओ। तुम हमारे जुमरे के नहीं हो, हिजबुल शैतान हो तुम। अल्लाह लेबनान की हिफाजत फरमाए, हिजबुल्लाह की हिफाजत फरमाए। हिजबुल्लाह वाले तो अल्लाह की जमात। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, बेशक हिजबुल्लाह ही कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की जमात ही कामयाब होगी। मांगने वालों को ही सदका है मिलता है उसका, मांगने वालों को ही मिलता। ही पर गौर कीजिएगा आप। अरे मांग रहे नहीं हो और मांगने वालों पर एतराज कर रहे हो। एक बार तो मांग के देखो, एक बार तो मांग के देखो। एक रिवायत बताओ आपको, हदीस के आईने में एक मुशरिक था, एक मुशरिक था जो जिंदगी भर तक या सनम या सनम या सनम बकता रहता। सनम बोले तो अरबी में पत्थर के बुत को बोलते हैं सनम, और लकड़ी के बुत को बोलते हैं वसन। वाव सा नून, कुरान में अवसान का लफ्ज आया ना, तो वो प्लूरल है और वसन सिंगुलर है। जैसे सनम सिंगुलर है, असनाम ये प्लूरल है, समझ गए आप? तो सनम बोलते हैं पत्थर के बुत को। तो वो पत्थर के बुत को आकर रोज रोज कहता था, या सनम या सनम या सनम या सनम। एक दिन भी नहीं मिलता, इनवायलेंट्री में, बेतवज्जुही में, जबान की लड़खड़ाहट में एक दिन सनम के बजाय समद निकल गया मुंह से, या सनम के बजाय समद निकल गया मुंह से। आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, हाजिर हूं मेरे बंदे। अरे बेसोचे समझे मांगोगे तो मिल जाएगा, अगर सही अकीदा रख करके मांगोगे। मांग के तो देखो, खाली तनकीद करते हो यार, खाली बदअकीदगी फैला रहे हो आप। एक दिन मांग करके हम श्योरिटी दे रहे हैं, मांग करके तो देखो। कसम खुदा की, खाना घर में नहीं रहता लेकिन रिलैक्स रहते हैं, सुकून से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास कानूनी खजाना नहीं है। कानूनी खजाना नहीं है हमारे पास, मोहब्बत का खजाना है।
हमारे पास अकीदे का खजाना है, और जिनके पास ये खजाना हो वो बड़े पुरसुकून होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जंगों में भी पुरसुकून रहते थे साहबा, रहते थे कि नहीं? मर भी जाते थे, शहीद भी हो जाते थे, पूरे खानदान के लोग पुरसुकून रहते थे माशाअल्लाह। गाजी की बीवी, शहीद की बीवी, ऐसे जुमले होते थे, पुरसुकून, ज़हनी सुकून चाहिए, एक बार तो आओ, हिदायत दो आप उनको, उन पर फतवे न लगाओ। ये दो जुमला रख लेना, अटेंशन या टेंशन। अटेंशन है तो दलील दूंगा, और टेंशन है तो जाओ, नहीं दूंगा। जब अल्लाह ताला तेरे ऊपर रहम नहीं कर रहा है, नबी को देखा कि नहीं अबू जहल ने, बताइए देखा कि नहीं? मैं जुमला देने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग, सवाल अभी पाकिस्तान में है, बेवकूफ सवाल कर रहे हैं कि फलस्तीन पर करम क्यों नहीं हो रहा, इन पर करम क्यों नहीं हो रहा, उन पर ये नहीं हो रहा, वो अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। इराक के वक्त 92 में जब सवाल हो रहा था गौसे पाक क्या कर रहे हैं, है नहीं, गौसे पाक क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो क्या जवाब देंगे आप कि ये सब जो है ना बंदे हैं, अंबिया किराम हो या औलिया अल्लाह हो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं। मैं डिफिकल्ट सवाल करवा रहा हूं तुमसे, बंदे तो बंदे होते हैं, सवाल है कि अल्लाह क्या कर रहा है, ये सवाल बता। कुछ समझे आप? अगर तुम्हें वली पर एतराज है कि ये करामत नहीं दिखा रहे हैं, गौसे पाक पर एतराज है कि करामत नहीं दिखा रहे हैं, अमेरिका का मिसाइल तबाह नहीं कर रहे हैं, इसराइल को तबाह नहीं कर रहे हैं, तो ये तो वली है, अंबिया है, बंदे हैं। खुदा तो हर चीज पर कादिर है। खुदा क्यों नहीं अपनी कुदरत दिखा रहा है? इसलिए क्यों का उन्वान नहीं है, बिलीव का उन्वान है बस। मेरी मां मुझे मारे या डांटे, मेरी मां है। मेरा बाप मुझे मारे या डांटे, मां है, बाप है, बस। ऐसा रिश्ता, ईमानी रिश्ता अपना जोड़े रखो, कर्म हो या ना हो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। हमने माना है, इसलिए नहीं कि हम आपसे कुछ लेंगे सऊदी रियाल, नहीं, बिलीव किया है, हमने माना है बस। मानने का उन्वान प्रैक्टिकल उन्वान नहीं होता, बिलीव का उन्वान होता है, थ्योरी का एक उन्वान होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ। और ये दुनिया फानी है मेरे दोस्त, इसको समझिए आप। कहां से कहां तक चली गई बात। मांगने वालों को ही मिलता है सदका गौस का, मगर शर्त है जिसने दिल से है पुकारा अलमदद या गौसे पाक। जिसने दिल से है, इस लफ्ज़ दिल पर दिल से पढ़िए, जिसने दिल से है पुकारा अलमदद या गौसे पाक। सही है कि नहीं? अब दिल से पुकारने क्यों? खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों पर मार लग गई है। लेकिन फिर भी वलियों के आस्थाने पर आओ, हो सकता है कर्म हो जाए, इनकी नजर, इनकी करम से तौफीक मिल जाए। जिंदा हो तो कह रहा हूं, मर जाओगे तो कुछ नहीं काम आएगा। पहले तो जमीन भी सुन्नी सही अकीदा है, जमीन गुस्ताखे रसूल नहीं है। इसीलिए तो एक मौके से हदीस पाक सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक साहबी पटक पटक यानी चप्पल को जरा बजा बजा करके चल रहे थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए चप्पल वाले, ए जूते वाले, ऐसे मत चलो कि जमीन के अंदर जाओगे ना तो तुम्हें जमीन दबाएगी। गोया जमीन को भी वो बता रहे हैं कि मेरी वफादार है, हाँ, उनको तकलीफ ना दो। आप समझ रहे हैं ना? तो आप चाहते हैं कि आप ताहद निगाह आपकी कब्र कुशादा हो, तो दिल सुभान अल्लाह एकदम रखिए माइल गौसे पाक के लिए, दिल से पुकारिए उनको, अल्हम्दुलिल्लाह वो मदद करेंगे, वो करते हैं। याद रखिए, आपकी ख्वाहिश से जो काम हो अच्छा है, रब की ख्वाहिश से जो काम हो वो बहुत अच्छा है। यानी अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाइए वो रब की ख्वाहिश है, वो रब की ख्वाहिश है। और रब की ख्वाहिश से जीने वाला, सुनो सूरह हामिम सजदा आयत नंबर 33 में आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। क्या बात है, तुम मेरी ख्वाहिश पे जिंदगी काटे हो ना, काट कर आओ, यहां तुम्हारी ख्वाहिश चलेगी। वाह वाह, दुनिया में मेरी ख्वाहिश पर चले, अब यहां तुम्हारी ख्वाहिश चलेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए आप इसको आसान ना ले, मांगने वालों को ही सदका है, मिलता है सदका गौस का, जिसने है दिल से पुकारा अल मदद या गौसे पाक। मेरे पीर मुर्शिद जो है आप जानते हैं हुजूर सरकार कला रदी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई है। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? हाँ, सुभान अल्लाह।
मैंने जो वसीला दिया, देख, नैयर आजम के मुर्शिद तेरे ही फर्जंद हैं। गौसे पाक को खिताब है, नैयर आजम के मुर्शिद तेरे ही फर्जंद है तुझे उनका वसीला अल मदद या गौसे पाक, है तुझे उनका वसीला अल मदद या गौसे पाक। आइंदा साल तर्ज में सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज गौसे पाक के करम से खूब बरसा है, इसको टेंशन नहीं लेना, या टेंशन से आप ले जाइए। जब कोई चीज सक्सेसफुल होती है तो हदीस में आया है कि वो रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है। यही वो बारिश है कि नापाक भी अगर नहा ले तो पाक हो जाता है। दुनिया के पानी, जमीन के पानी से आपको लेकर के वजू ये वो सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बारिश के पानी में अगर आप पूरे ऑल इन ऑल भीग गए, नापाक भी थे तो पाक हो जाएगी। क्यों? अंजलना मिनस समाए माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल किया है। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला जो भी बूंद आप पर गिरे हैं, गौसे पाक की मोहब्बतों के हवाले से खुदा इस बूंद को सलामत रखे और कभी भी बदअकीदगी आपके आजू बाजू भी नहीं और आपकी नस्लों के आजू बाजू भी ना घूमे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि। गौसे पाक समझ गए आप, शायद समझ गए, गौसे पाक समझ गए आप। खुदा करे जियारत में आ जाए मुस्तफा, खुदा करे जियारत में आ जाए आले मुस्तफा। वजू करके सोइएगा तो जरूर आएंगे, दरूद पढ़ के सोइएगा तो जरूर आएंगे, मोबाइल देख के सोइएगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि मोबाइल देखते नहीं है, मोबाइल में दिखता है। आप देखने जाते हैं जुम्मन, दिख जाता है जुमराती। मैं जो चलाता हूं यूट्यूब, ये इसलिए नहीं कि यूट्यूब पर डालूं, बल्कि इसलिए कि मेरी वीडियो, अब सोशल मीडिया का दौर है, काट छांट करके वहाबी लोग जो पेश करते हैं ना, देखो मुफ्ती सब जायज बोल रहे हैं, मुफ्ती सब नाजायज बोल रहे हैं, बस उसके लिए मैंने 1000 टीवी का डिस्क रखा है और सबको मैं ये रखता हूं ताकि वो लोग काट छांट भी ना कर सके। असल मकसद सिर्फ ये है, वरना मोनेटाइज करने के लिए रोज फोन करते हैं गूगल वाले मुझको। मोनेटाइज का मतलब ये कि आपको पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं? मैं कहता हूं पैसा मिलेगा ये तो ठीक है, लेकिन क्या करेंगे आप? हम एडवर्टाइज देंगे। वाह, पर्दे के वीडियो पर बेपर्दगी का एडवर्टाइज दोगे आप? अगर तुम कहते हो कि हम कुरान का एडवर्टाइज करेंगे, हदीस का एडवर्टाइज करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो खालिस दीनी है, उसमें नंगी कैसे आ सकती है? पर्दे के उन्वान को खोलने से पहले वो आती है कि नहीं? आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे मौलवियों के वीडियो, कई ऐसे वीडियो अजीब सब आते हैं कि नहीं? पैसे के लिए तो करवा लिए मोनेटाइज, लेकिन आखिरत तबाह हो जाएगी। इसलिए खबरदार, हम आज सबके सामने और आस्ताने वली में इनको मतलब विटनेस बनाकर कहते हैं, नहीं, हमें मोहब्बत का, अकीदत का, तौहीद का, रिसालत का, वलायत का ये छना हुआ, ये मोहब्बत का हमें पैसा चाहिए जिसके 1 रुपए में लाखों की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो बोल रहा था दीदार, सुभान अल्लाह, दरूद पढ़ेंगे नबी आएंगे, सुभान अल्लाह। और दरूद में जब आले नबी पर दरूद पढ़ेंगे, तवज्जो करेंगे तो आले नबी भी आएंगे। मगर आप जरा वैसा कीजिए, आप जो है ना सुबह में 1000 के लिए, 2000 के लिए, 500 रुपए के लिए मेहनत करते आप, है ना, कसम खुदा की आप जो है जरा सा भी तो याद कर लीजिए कभी भी साहबे किराम को, जरा सा भी याद कर लीजिए। इतने कामयाब साहबा, या अल्लाह, इतने कामयाब कि कामयाबी की बुनियाद बन गए। सूरह बकरा आयत नंबर 137 में अल्लाह पाक फरमाता, इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। सुबह क़यामत तक के लोगों, अगर सहाबा को आइडियल ऑफ ईमान मानोगे तब हिदायत पर रखूंगा। इतने बड़े मेयारे हिदायत बन गए। आज एक नया जुमला बोल रहा हूं, कान छिदाने वाले को स्टार समझते हो आप? जिसको रब ने मर्द पैदा किया, वो औरत की शक्ल इख्तियार करने वाले को स्टार कह रहे हो आप? मेरे नबी ने अपनी जबान से सहाबे किराम को स्टार कह दिया है। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा स्टार है। यही तुम जिनकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पर रहोगे। मगर मुझे बताओ, तुम सलमान की इक्तदा करोगे हिदायत पर रहोगे? स्टार मानते हो? शाहरुख की हिदायत करोगे? इक्तदा तो हिदायत पर रहोगे? नहीं, जो भी हिदायत है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टार ऑफ इस्लाम सहाबा है, स्टार ऑफ हिदायत सहाबा है, स्टार ऑफ इक्तदा सहाबा है। इक्तदा करो सहाबा की करो, क्योंकि वो कामयाब है।
उनको कामयाब कहा गया, उनको अल्लाह ने अपनी जमात कहा, उनके लिए मदद, उनके लिए 313 पर हजारों फरिश्ते को उतार दिया, उनके लिए वजह क्या थी? वही बेदेखे मुस्तफा को चाहा, बेसमझे मुस्तफा को कोई तनकीद नहीं, बस नबी ने कह दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नबी ने कह दिया तो हम जो है फौरन हमारे पास कोई क्लिप आ जाए ऐसा कहते। अभी देखिए उम्मी के हवाले से 2 महीने से सबाब दे देकर थक गए। क्या इससे पहले आपको नहीं समझाया गया? समझाया गया। फिर क्यों इफेक्टिव है आप? ये इफेक्टिव इसलिए है कि आपके ऊपर तस्दीक हावी नहीं है, बीज हावी नहीं है। क्या आपने नहीं सुना? मेराज के हवाले से उमर इब्न अबू बकर सिद्दीक के पास दौड़ता हुआ अबू जहल आया था और आकर कहा था, ए अबू बकर, बड़े आशिक हो ना तुम, देख नॉनसेंस बात कर रहे हैं मोहम्मद। क्या रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से आसमान, फिर वहां ऐसा इम्पॉसिबल है? उनकी तरफ देखा भी नहीं अबू बकर सिद्दीक ने और कहा, अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो सच है। सुभान अल्लाह, क्या बात! ये है मानने का पैमाना। लेकिन आप लोग कोई भी क्लिप आ जाए, मुफ्ती साहब ये देखिए मेरे पास क्लिप आई है, इसमें क्या क्या की बोल रहे हैं, ये बिलीव है? आप गेहूं का खाना भी खा रहे हैं और कोई कह रहा है नियाज़े गौसिया हराम है, तो आप उसको देख रहे हैं, फौरन डिलीट कीजिए उसको, फौरन डिलीट कीजिए उसको। कोई भी तौहीद और रसालत और वलायत के खिलाफ निगेटिविटी न शेयर कीजिए, वरना मुकम्मल आप भी इसके शरीक होंगे, आप भी को भी पकड़ेगा अल्लाह ताला। गलत चीज को आप कैसे फैला सकते? ये बताइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबे किराम के जो दुश्मन सामने अपोजिशन, मुनाफिकीन अरब, कुफ्फारान अरब, कुफ्फार कुरैश, नबी को कितने हेजों उनके शोरा क्या क्या बकते थे कि नहीं? लेकिन आज कोई भी किताब मौजूद है? क्या आप पढ़े हैं कि हेजो ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े? कोई किताब मौजूद नहीं। क्यों? इसलिए कि सहाबा को नबी से मतलब है। सुभान अल्लाह, जिनको जो बकना है बके, हम तो बस नबी नबी करेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे ही आप अल्लाह को मानते, रसूल को मानते, वली को मानते, तो मानने का उन्वान यह है कि इनके खिलाफ जो भी आए नहीं मानेंगे। हमसे ज्यादा ये नमरूद की हकीकत जानते हैं, हमसे ज्यादा ये फिरौन की हकीकत जानते हैं, हमसे ज्यादा ये जानते हैं कारून और शद्दाद के मामलात को, लेकिन फिर भी ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। मुझे बताइए, फिरौन जब जा रहा था उसका इरादा था डूबने का इरादा था, लेकिन अल्लाह ने डुबोया कि नहीं? नमरूद का इरादा था मरने का, तो हुकूमत पे हुकूमत करने का इरादा था, लेकिन एक मच्छर ने मार दिया उसको। समझ रहे हैं आप? शद्दाद तो ऐसी जन्नत बनाया था कि वाह वाह हम सदियों आइश में रहेंगे, अल्लाह अपने पास रखो जन्नत, ये सोच करके, और जब घुसना ही चाह रहा था तो दरवाजे ही पर अल्लाह ने मार दिया। मैं बस इतना बोलने जा रहा हूं, उनका इरादा नहीं भी है, मगर अल्लाह ने हलाक किया कि नहीं? आज फिरका परस्त ताकतों को अपने अकीदे और ईमान से खुदा की बारगाह में ये साबित कर दो, अल्लाह हम तुझे मानते हैं। और कल तूने जिस तरह नबी के मानने वाले को, अपने मानने वाले को, कल तूने आम नबी के, ध्यान दीजिए, आम नबी के कट्टरपंथियों को हलाक किया, आम नबी के कट्टरपंथियों को हलाक किया। ये तो तेरा महबूब है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये तो तेरा खास महबूब है, हम उसके मानने वाले हैं, और तू हम पर जुल्म कैसे कर सकता है? इसलिए आप भी वो दिखाओ और ये तसव्वुर दो कि तुम आम नबी के मानने वाले नहीं, खास नबी के मानने वाले। वो मूसा का था, मूसा का पोजीशन था फिरौन, इब्राहिम का पोजीशन था नमरूद, था कि नहीं? लेकिन हलाक किया कि नहीं किया? वजह क्या थी हलाक करने की? मानने वालों ने माना, उनकी मदद हुई, ना मानने वाले को हलाक कर दिया अल्लाह। आप वैसा पेश आओ, आप क्वांटिटी मत देखो। हम हमेशा कम तादाद में रहे हैं, लेकिन हमेशा अहम रहे हैं, उन्वाने तौहीद रहे हैं, उन्वाने खुदा रहे हैं। क्योंकि जंग जो जीती जाती है, ध्यान दीजिएगा, कामयाबी का जो राज है वो क्वालिटी या क्वांटिटी नहीं है, बल्कि कामयाबी का राज हक्कानियत है। अगर आपके पास हक है, आप हक के साथ हैं, आप हक पर चलते हैं, तो आप ही को कामयाबी मिलेगी। कुरान कहता है, ला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम साहिब ईमान हो, ईमान पर कायम हो, तो परेशान मत हो, गमजदा मत हो, टेंशन मत लो, कामयाबी का ताज तेरे सर पर ही रखूंगा। रब वेट करने कह रहा है, यार कमाल है। कोई बड़ा आदमी आपको कह देता 2 मिनट वेट करो, आप करते कि नहीं? वो खालिक वेट करने कह रहा है, तो आप बस इंतजार करो, इंशाअल्लाह मदद होगी।
ہم نہ صحیح ہماری نسلیں دیکھیں گی، کیونکہ ہم نے اصلوں کے حوالے سے بھی دیکھے ہیں، تو ہم نہ صحیح ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن ہم خدا کا دامن نہیں، رسول کا دامن نہیں، توحید کا دامن نہیں، رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ولی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ہمیں محنت سے نہیں خدا کے فضل سے ملے، خدا کے فضل سے ملے ہیں۔ مومن گھر میں، مسلم گھر میں اپنے من سے نہیں، رب کی مشیت سے پیدا ہوئے، رب نے ہمیں چاہا ہے۔ مسلمان گھر میں، پھر سنی صحیح عقیدہ گھر میں، ولی اولیاء اللہ کے ماننے والوں کے گھروں میں الحمدللہ ہمیں پیدا کیے، رب کی مشیت ہے، رب کی چاہت ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں اب کیجئے، 1000 کے لیے 2000 کے لیے جتنے کے لیے آپ محنت کرتے کیجئے، لیکن ایمانیات میں توحید کے حوالے سے کوئی بھی غلط چیزوں میں آپ شریک مت ہوئیے، جسے کہتے ہیں شیئر مت کیجئے، فارورڈ مت کیجئے۔ آپ آئے تو آپ کا ایسے مطلب یہ کہ موبائل کا بھی اسپیس بھرے گا اور ایمان کا بھی اسپیس بھرے گا۔ اس لیے آج ریفریش کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کلپ نبی کے حوالے سے یا ولی کے حوالے سے، بہرحال ہے سنت و جماعت کے عقائد یا معمولات کے حوالے سے کچھ بھی آ جائے، آنکھ بند کر کے آپ یہ مان لو، جس طرح آپ گاڑی پہ چڑھتے ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹرین چلانے والے کو؟ مگر کتنے پرسکون کھانا کھا لیتے ہو یار، 2 دن تک 3 وقت 4 وقت کا کھانا کھا لیتے ہو کہ نہیں آرام سے؟ چلانے والے پر بھروسہ ہے، وہ چلائے گا، اچھا چلائے گا۔ کہ بھروسے کی دنیا، اعلیٰ حضرت نے آپ کو کہہ دیا ہے، مسلک کہہ رہا ہے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کسی نے کہا ڈبو دو، کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ میں نے کہا ڈبو دو بعد میں کہا، آنے دو پہلے کہا ہے۔ تم آنے دو پڑھتے پڑھتے کامیاب ہو جاؤ گے، ڈبو دو کا جملہ ہی نہیں آئے گا، آنے دو جو پڑھو گے نا، یا پڑھتے پڑھتے ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ڈبو دو کا ہی عنوان ہی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ تنقید کرنے والے کریں گے، جواب بنتا ہے تو دیجئے، نہیں تو ٹینشن نہیں، اٹینشن سے اپنی زندگی کاٹیے۔ الحمدللہ، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ آپ کے لیے سب کر رہے ہیں یار، آپ صرف یہ کیجئے کہ جو سب کر رہے ہیں نا اس کو مانیے۔ آپ نبی نے جو آپ کے لیے کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے حسین کو بخش دے، میرے حسن کو بخش دے، میرے علی کو بخش دے، میری فاطمہ کو بخش دے، ام کلثوم زینب رقیہ کو بخش دے، نہیں، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے۔ آپ نہیں تھے، آپ نہیں ہیں، سچ میں آپ پریکٹیکلی طور پر، فزیکلی طور پر جس وقت نبی کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے، 1400 سال پہلے اس نبی نے تمہاری بخشش کروا دی ہے خدا سے، اب اس بخشش کو بچاؤ، اس نعمت کو بچاؤ۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اس میری میں داخلہ ہو، اس میری میں شامل ہو، اس میری میں شمولیت کو یقینی بناؤ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اگر گستاخی والی باتیں رکھو گے، اگر گستاخی اور تنقید والی امی بے پڑھے اس طرح کی باتوں میں اگر لگ جاؤ گے، یہ امتی کا عنوان میں جس نبی نے تمہیں میری کہہ کر کے پکارا، تم بھی کہہ دو یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنا کہا ہے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب آپ یقین جانیں کہ ہماری طرف سے نہ کوئی گستاخی، نہ کوئی توہین، نہ کوئی اور باتیں، نہ ذاتی طور پر اور نہ کسی کے شیئر کیے ہوئے کو شیئر کریں گے۔ آپ اس سے سلامت رہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا السلام علیکم ایھا نبی کا یہی مطلب ہے؟ سلام ہو آپ پر سے مراد یہی ہے آقا ہم توہین نہیں کریں گے، آپ سلامت رہیں، آپ میری توہین سے سلامت رہیں، میری تنقید سے سلامت رہیں، یہ ہے اصل۔ درود شریف پھر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غوث جب سمجھ گئے ہیں نا آپ، الحمدللہ غوث پاک یہ 11ویں کا کھانا، یہ فاتحہ، یہ نظر نیاز، یہ آپ کے معمولات ہیں، لیکن غوث پاک یہ کوئی عقیدت کا نام نہیں ہے، غوث پاک عقیدہ ہے، غوث پاک ایک توحیدی عنوان ہے، غوث پاک یہ ایمانی عنوان ہے، بڑا لیول ہے ان کا۔ اب آپ بتائیے کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کون ہے؟ بولے قرآن پاک۔ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن پاک۔ قرآن پاک میں کیا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، 6666 آیتوں کا مطلب کیا ہے، جو جانتا ہوگا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ 6 جلدوں پر مشتمل عربی میں غوث پاک نے تفسیر الجیلانی یعنی الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک عربی میں ترجمہ کیا۔ اللہ کے کلام کی مراد کیا ہے، آپ کے حساب سے کہوں تو اللہ کی مراد کیا ہے خدا کے کلام میں،
اس سے کیا مراد، اس سے کیا مراد، اس سے کیا مراد؟ عبد القادر جیلانی عربی میں، بیروت کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، تفسیر الجیلانی 6 جلدوں پر مشتمل، 2 1 ہزار صفحات عربی میں۔ بیروت لبنان سے جو کتاب چھپتی ہے وہ بڑی عجیب چھوٹی چھوٹی ایک دم تحریر رہتی، انڈیا میں اگر لکھے تو 4-5 صفحہ ہو جائے، 4-5 صفحہ ہو جائے۔ تو 6 جلدوں پر مشتمل عربی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام تفسیر الجیلانی ہے، یعنی غوث پاک خدا کے کلام کے عربی مفسر ہیں۔ مگر اس عربی مفسر کو ذرا سمجھیے آپ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت سمجھیے، خود غوث پاک عرب کے نہیں ہیں، جیلان کے ہیں، فارسی جہاں بولا جاتا جیلان یہ فارسی لفظ ہے، آپ سمجھیے اس کو۔ ایک آیت کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بڑی اہم آیت۔ اس کے تحت تفسیر روح المعانی جلد 12 میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اوتھینٹک ہے، حضور شیخ الاسلام اس کو بڑے اچھے سے پیش کرتے ہیں، ان کے بعد میں نے پیش کرنا شروع کر دیا اس روایت کہ آیت نمبر 40 میں اس آیت کے تحت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ظہر سے پہلے ایسے بیٹھے نماز کا یہ کر رہے ہیں، انتظار، ایسے بیٹھے 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 خواب، مطلب یہ ہو گئے، نیند آ گئی، قبل الظہر کل نیند آ گئی۔ اچھا، خواب میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بیٹے خلق کثیر تیرے پاس جمع ہے، تم ان کے پاس تقریر کیوں نہیں کرتے؟ بغداد کی بات ہے یہ، اور بغداد عرب ہے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ واعظ کیوں نہیں کرتے؟ لماذا لا تتکلم، تم کلام کیوں نہیں کرتے ان کے سامنے؟ کہتے ہیں انا اعجم، میں عجمی ہوں، عربی کے سامنے کیسے بولوں؟ ابو جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، یہ واقعہ نہیں ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت جو میں نے آیت پڑھا، فاتحہ والی آیت ہے نا، ما کان محمد، اس کے تحت تفسیر روح المعانی کی روایت ہے، یہ دھیان دیں آپ، یہ کوئی قصے کہانی والی بات نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عریضہ پیش کیا، عقیدہ سنیے آپ، اور غوث پاک کو سمجھ گئے تو کی سمجھیا، کہتے بیٹے فضل آگے آؤ، آگے آتے، افتح فمک یا فاک دونوں، منہ کھولو، کھولا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن ڈالا ہے، کتنی بار؟ 7 بار لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد کہا جاؤ تقریر کرو۔ مگر اسی اسنا میں پھر کہتے ہیں فرتجا علیہ، پھر بھی کپ کپی۔ ذرا عقیدہ سلامت رکھیے گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ باب العلم اور مدینۃ العلم اور باب العلم کے مجمع البحرین کا نام غوث زماں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجمع البحرین یعنی دونوں سمندر سے جن کو فیض ملے اسے مجمع البحرین بولتے ہیں، بحر نبوت اور بحر ولایت۔ بحر مانے سمندر، کپ کپی ابھی تک ہے۔ اتنے میں باب العلم تشریف لاتے ہیں، بیٹے کیوں نہیں تقریر کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تقریر کر رہے ہو؟ خلق کثیر تم سے فیض یاب ہونے کے لیے تیار ہے، اتنے بھاری مجمع ہیں۔ کہتے ہیں بھائی آدمی ابھی بھی کپ کپی تاری ہے، میں کیسے عربی کے سامنے کیسے بولوں؟ عربی ہے وہ۔ تو انہوں نے فرمایا آ گیا ہو، 6 مرتبہ انہوں نے لعاب دہن ڈالا۔ کتنے مرتبہ؟ تو اس سے پہلے کہ دیگر باتیں آگے ہو، ذرا مین عقیدہ سمجھیے توحید کا، رسالت کا۔ کیا ریئلٹی تھی رسالت کی؟ کیا ریئلٹی تھی؟ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شیعوں کی محفل میں عبد القادر جیلانی کیوں نہیں ہے؟ رافضیوں کے یہاں عبد القادر جیلانی نہیں ہے، جبکہ سیدوں کی شان بان قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں اور خاندان ہاشم کا بڑا خوبصورت عنوان اپنے زمانے کے عبد القادر ہے، پھر بھی عنوان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رافضیت نہیں ہے، وہاں وہی ترتیب ہے جو رسالت کے بعد ابو بکر صدیق ہے، عمر ابن خطاب ہے اور عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہ اپنے من سے
یہ من والے ہیں اور ہم من والے نہیں ہیں, ہم دھن والے ہیں. توحید کا دھن ہے ہمارے پاس, رسالت کا دھن ہے ہمارے پاس. ہم بلیو کرتے ہیں, اپنے من سے نہیں, اپنی تھنکنگ سے نہیں مانتے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر پوچھ پڑتے ہیں, ابو جان نانا تو 7 بار ڈالے, آپ 6 ہی بار کیوں ڈالے؟ لماذا لا تکملها 7, یہ عربی کا لفظ ہے کہ آپ نے 7 بار مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کی طرح نہیں ہوں. اگر 7 ڈال دیتا تو برابر ہونے کا کوئی شکوک و شبہات جنم لے سکتے تھے. میں نے 1 کم کیا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ میں نبی کا ادب کر رہا ہوں. سبحان اللہ, ایک غوث پاک کی تعلیم ہے, درس ادب مصطفیٰ, درس ادب ولی کامل مولا کائنات, یہ ہے غوث پاک. بس سال میں مریدوں کو جمع کر لینا, ڈیگوں پہ ڈیگا ہے, قوالیاں چل رہی, چیخا پکارا ہو رہی, کیا ہے یہ نہیں ہے. توحید کی ریئلٹی بتاؤ, یہ ہے غوثیت. رسالت کی عظمت بتاؤ, یہ ہے غوثیت. مولا کائنات کی ولایت بتاؤ, یہ ہے غوثیت. یہ غوثیت ہے, اس کو سمجھیے آپ. قرآن پاک آپ ذرا سوچئے, ایک لفظ بتائیے, قرآن پڑھنے آتا کہ نہیں آپ کو؟ ٹینشن نہیں لینا, نہیں آتا تو ابھی عمر ہے, کوشش کیجیے. آپ پڑھتے نہیں تو کم سے کم انگلی تو رکھیے آپ, انشاءاللہ وہ انگلی جہنم میں نہیں جائے گی. اور اللہ تو کاٹے گا تو نہیں, بول دینا اللہ تعالیٰ جب ایک انگلی کو جنت میں ڈالا تو پورا ہی ڈال دینا, تیرا کیا ہوگا, میرا بھلا ہو جائے گا. آپ سمجھ رہی نا, ذرا خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے نا, ذرا سوچیے. آپ انگلی ہی رکھیے, پڑھنے نہیں آتا ہے تو ٹینشن نہیں لیجیے آپ, لیکن سیکھیے, پڑھیے. آپ دیکھے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے, وغیرہ وغیرہ, پورا آخر تک ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ آتا کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ بولیے الف لام میم. وہاں پہ سر سے نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا آتا؟ بولیے الف لام میم. سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت کون ہے؟ الف لام میم. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, لیکن الف لام میم کے نیچے جب دیکھیں گے آپ تو کیا بھی نہیں لکھا ہوا, ایک دم خالی ہے. ذالک الکتابوں سے ہے, وہ عظیم کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں. اب آپ بتائیے, الف لام میم اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ نا اللہ کا کلام. اسی طرح سورہ آل عمران میں الف لام میم, پھر آگے جائیے الف لام را, الف لام میم را, ہا میم عین سین قاف, کاف ہا یا عین. 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں, 29 مقامات, لیکن سب کے نیچے بالکل خالی جگہ. ٹھیک ہے, آپ کو عقیدہ کیا دیا گیا ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے اس کی مراد. ہم لوگ بھی جب پڑھاتے ہیں تفسیر تو یہی بولتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے, یہی ہم بولتے ہیں. عقیدہ یہ دیے, لیکن ٹرانسلیشن نہیں ہے. غوثیت کو سمجھیے, عبد القادر کو سمجھیے, اسٹیٹس آف معرفت ربانی سمجھیے, لیول آف علم ربانی سمجھیے. خدا کے کلام کی مراد کی جو معرفت حاصل ہے غوث پاک کو, ایسے ہی عارف باللہ یا سلطان العارفین وہ نہیں ہے. الف لام میم, جب میں نے تفسیر الجیلانی پڑھنا شروع کیا, تفسیر الجیلانی 4 سال سے میں مسلسل اس کا درس دے رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ الف لام میم کے نیچے بھی جو ہے غوث پاک لکھنے سے چھوڑے نہیں. 2 لائن پر الف لام میم کی. اب اس کو تفسیر نہیں بول سکتے, کیونکہ تفسیر بولتے ہیں بالکل قول الہی کی مراد کو ظاہر کرنا, اور جب یہ ظاہر کرنے کا عنوان ہی نہیں ہے, اس کو توضیح جیلانی بول سکتے ہیں. توضیح جیلانی اور وضاحت جیلانی, معرفت ربانی, ربانی معرفت کے آئینے میں, جیسے امام اہل سنت نے کہا نا, کاف گیسو ہا دہن یا عین, کیا بات ہے یار, بولے نا کاف ہا یا عین صاد, تو وہ بھی حروف مقطعات ہی اشارہ کر رہے ہیں, کاف گیسو کاکل. سبحان اللہ, وہ یہ حق ہے تعویل, صحیح تعویل حسن جس کو بولتے ہیں کرنے کا حق ہے. غوث پاک فرماتے ہیں الف لام میم کی وضاحت کو سنیے, اور آج پوری دنیا کو بتائیے مسلمانوں اور سنی صحیح عقیدہ, خاص طور سے آپ سمجھیے اس کو. 1400 کتاب لکھنے والا امام وقت کا لکھتا ہے سب کی شان میں, مگر سب سے زیادہ اگر منقبت خوانی امام اہل سنت نے کی ہے تو سلطان العارفین غوث زمان کی شان میں کی ہے. حالانکہ ان کے زمانے میں
औलियाओं की कतारें हैं। ज्यादा जमाना तो अभी 100 बरस का जमाना है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर लिखा है मनाकिब मनकबतें तो गौसे पाक की शान में लिखी। क्या बात है, खुद कहते हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, क्या बात, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आप अकीदत में इसको सुन रहे हैं, मुजद्दिद के आईने में सुनिए इसको। कैसी एकदम नॉनसेंस बातें हैं कि नहीं। काबा कैसे आएगा तवाफ करने के लिए? काबा मताफ है, काबा तवाफ की जगह है ना, वो तवाफ करने वाला नहीं है, वो है जिसका तवाफ किया जाता है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। गौसे पाक की बारगाह का, गौसे पाक का तवाफ दरे वाला, यानी गौसे पाक के दर का तवाफ काबा करता है। अब आप बताइए कि ये इमाम अहले सुन्नत का जब जुमला है तो कोई गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 अंगूठी वाले वली नहीं है। हाँ, ये चुम्मा चाटी वाले वली नहीं है, ये तो शिरको बिदअत के खात्मा करने वाले इमाम हैं। समझ रहे ना? ये वो है कि कहीं तौहीद पर उंगली ना उठे, कहीं रिसालत पर उंगली ना उठे। ऐसा फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। क्या बात है, खुदा से होते हुए रसूल की बारगाह में कैसा जोड़ते हैं। तौहीद भी उनकी बारगाह में चमकती नजर आ रही है, रिसालत भी उनकी बारगाह में। कैसे हुआ? वो उस कुरान की आयत से समझिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है, और काबा मुमकिन है, इसलिए गौसे पाक तो अशरफुल मखलूकात के वली हैं। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा अख्ताब। अब ये सब तो इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात है ना, सुभान अल्लाह। काबा घर है, ईंट की चीज है ना, लेकिन गौसे पाक अशरफुल मखलूकात की शान है। ये मेन है, जरा समझिए आप गौसे पाक को। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अलिफ लाम मीम के नीचे आप देखिएगा, अभी मैंने 29 आयतों की जो तौजीह जिलानी है उसको मैंने तर्जमा कर दिया है। हाँ, परेशानी तो बहुत हुई, 2 साल लगे उससे 29 आयतों का तर्जमा कर। वो इंडिया का डिक्शनरी क्या हो उसका तर्जमा करेगा? गौसे पाक की एक लुगत को समझने के लिए बाप रे बाप वजू करना पड़ता, क्या क्या नहीं करना पड़ता, बल्कि अट्रैक्शन, पूरी तवज्जो खुद गौसे पाक जब तक ना कहे समझ में आ ही नहीं सकता। 29 मकामात पर जो आए हैं, मैंने उन पूरी हुरूफ मुक़त्तआत को किताबी शक्ल दे दी है। हुरूफ मुक़त्तआत यानी तौजीह जिलानी के नाम से, मगर उसका नाम उर्दू में रखा मैंने, शान खैरुल वरा बज़बाने गौसुल वरा। शान खैरुल वरा बज़बाने गौसुल वरा। अब जरा सुनिए, ये नाम क्यों दिया मैंने? कसम खुदा की आप भी आशाश करोगे कि दिफाए रिसालत, डिफेंस ऑफ पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हम करते हैं, क्यों हमारा मकसद है। पहले तो यही समझ जाइए कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 80 में या 81 में अल्लाह पाक ने नबियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि नबूवत और रिसालत जो मैंने तुम्हें दिया है, किताब और हिकमत जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तो है ही तुम्हारे लिए शान, लेकिन मेन चीज कह रहा हूं कि मोहम्मद अरबी का दिफा करना ये मेन है। अंबिया किराम को डिफेंस ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंसर, ये पोजीशन अता फरमा। कुरान कहता है लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, उनको बिलीव भी करना और उनकी हिमायत भी करना, मदद भी करना। ये मदद वो है डिफेंस के माना, हिमायत करना। जब भी मोहम्मद अरबी पर उंगली उठे, खबरदार खबरदार, जैसे हो सके उसका दिफा करना। गारत होंगे इंशाअल्लाह, एक ना एक दिन होंगे। हम न सही, हमने जुमला कहा, हम न सही हमारी नस्लें जरूर देखेंगी, क्योंकि हम खुदा पर ईमान लाए हैं, खुदा की कलाम पर ईमान लाए हैं। और दिफाए रिसालत जब रब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा है तो आप उसी आईने में रहिए। ये चीख पुकार नहीं, तवज्जो दीजिए ना, इमाम अहले सुन्नत की तरह हर दौर में बातिल होगा, सुबह क़यामत तक होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने बातिल को बुलंदी नहीं, जा अल हक वज़हक़ल बातिल, हक बुलंद होगा उसकी किस्मत में है, और बातिल मिटेगा उसकी बदकिस्मती है। ये अल्लाह पाक ने लिख दिया है। इसलिए आप हक हो, हक पर हो, हक को मानते हो तो आप बस अल्लाह पर यकीन रखें। आप 29 मकामात पर, जिसमें पहले अलिफ लाम मीम की वजाहत कर दो और आप समझिए गौसुल वरा का मकाम। वरा बोलते हैं मखलूक को, वाव रा या खड़ा जबर रा, वरा ये मखलूक को बोलते हैं, ठीक है। और वाव रा आइन वरा, ये तकवा से आला मंजिल है।
वरा आइन से, वो तकवा से आला मंजिल, जो तकवा के ऊपर मंजिल होती है ना, वो बहुत बुलंद मंजिल, तकवा की आला कड़ी का नाम वरा है, उम्मुल वरा। आप देखें ना तो वरा, उसी मुनासिबत से मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है वरा, खुदा करे नसीबा अच्छा हो। तो वरा, अब जरा समझिए, मैं ये वरा का लफ्ज और फिर अलिफ लाम मीम की वजाहत और गौसुल वरा का फैजान लेकर आप जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, और घर जाते ही सलाम कीजिएगा यार अल्हम्दुलिल्लाह, सही कह रहा हूं। आप इंतजार मत कीजिए कि बीवी सलाम करे। अगर झगड़ा भी है ना तो आप झगड़ा खत्म कीजिए कि गौसे पाक कह रहे हैं आपसे, आप नहीं मानेंगे गौसे पाक, आप सलाम कीजिएगा। किसी से अगर टेंशन लिए हुए आप जाकर के मिलिए और माफी मांगिए, अगर गलती आपकी नहीं है तब भी आप माफी मांगिए, डबल सवाब होगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह, डबल सवाब होगा। और उनको नदामत होगी दूसरे दिन आपसे, फिर वो माफी मांगे, आपसे माफी मांगे। आप जरा समझिए, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान लेकर जाइए और सुनिए। 29 मकामात पर है, लेकिन मैं एक मकाम जो अलिफ लाम मीम है उसकी वजाहत कर रहा हूं, और जो शान खैरुल वरा बज़बान गौसुल वरा नाम रखा उसकी वजाहत सुनिए। फरमाते हैं अलिफ लाम मीम तीनों को अलग अलग करते हैं, 3 इंडेक्स बनाते हैं, अलिफ का इंडेक्स, लाम का इंडेक्स, मीम का इंडेक्स। इंडेक्स समझ रहे ना, बना करके अलिफ की जगह में लिखते हैं अय्युहल इंसानुल कामिल, अय्युहल इंसानुल कामिल, और लाम की जगह लिखते हैं लाइक लिखिलाफतना। आप समझिएगा, लाइक लिखिलाफतना, यानी अलिफ से इंसान कामिल मुराद ले रहे हैं और लाम से लाइक लिखिलाफतना मुराद ले रहे हैं, और मीम से मुलाजिम ले इस्तिक्शाफ। आगे इबारत पूरी है, अल्लाह के असरारो रुमूज को जानने के लिए तैयार। तो अब माना क्या हुआ, अलिफ से ए इंसान कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ध्यान दीजिएगा, और ए हमारी खिलाफत के मुस्तहक, और ए हमारे असरारो रुमूज के जानने के लिए हमेशा तैयार। अलिफ लाम मीम से दर हकीकत खुदा ने अपने महबूब को खिताब फरमाया है, और ये बता रहे हैं गौसे पाक क्या हक अदा कर रहे हैं विरासत नबुव्वत का, कसम खुदा की, वारिसे उलूम नबविया का हक देखिए आप। अब जरा सुनिए, खुदा का ये कलाम जरूर है, इस कलाम का एक नाम है खिताब। सूरह साद में वफस्लल खिताब, खिताब, खिताब के लिए जरूरी है मुखातिब, यानी खिताब करने वाला, और जिसको खिताब किया जाए उसे बोलते मुखातब। मुखातिब, जैसे मैं मुखातिब हूं और आप मुखातब हैं, और गौसुल वरा खिताब है, ये उन्वान। तो कुरान का एक नाम है खिताब। तो सवाल यह है, मुखातिब कौन और मुखातब कौन? गौसे पाक ने बता दिया, मुखातिब खुदा है, मुखातब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और कलाम खिताब है, खिताब है। इसलिए हम सुनो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 की आज वजाहत भी कर दो, सही बुखारी, इमाम बुखारी की तफसीर, किताबुत तफसीर से। ये गौसे पाक का देखो फैजान, कसम खुदा की। फरमाते हैं दरूद का मतलब जानते हो? इमाम बुखारी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद शेख अबुल आलिया से पूछा कि दरूद सलात अलन नबी का क्या माना है, तो फरमाते हैं कि सलात अलन नबी का माना यह है कि अल्लाह ताला सारे फरिश्तों को इकट्ठा फरमाता, और इकट्ठा फरमाने के बाद कुर्सी खिताबत पर अपनी शान के मुताबिक तशरीफ रखता है। मुखातब फरिश्ते हैं और खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। सनाहु लहु इंदल मलाइका, हुजूर की सना बयान करता है मलाइका के पास। हाँ, मुखातब जिससे खिताब किया जाए, और मुखातिब खिताब करने वाला, और खिताब कलामे इलाही। तो खुदा मुखातिब है, रसूल मुखातब है, और कुरान खिताब है। अब तफहीमुल कुरान पढ़ेंगे या तफहीमुल नबी पढ़ेंगे आप? बेवकूफों ने उम्मी का तर्जमा कर दिया और तफहीमुल कुरान लिख दिया। यही सबसे मिस एक्सप्लेनेशन हो रहा है। दुनिया की डिक्शनरी से कुरान का तर्जमा बताओगे, मारफत रब्बानी है तब कलामे इलाही की मुराद बता सकते हो। इसलिए कि कलामे इलाही तो पर नहीं, मुस्तफा पर नाज़िल हुआ है।
तुम्हें बाद में मिली है, मुस्तफा पहले मुखातब है। और आज फिक्स कर दिया 29 आयतों में, और इमाम अहले सुन्नत पर भी उनके मुबारक तुरबते पाक के खाक को लेकर अपने ताज की मेराज समझते हुए जुमला कह रहा हो कि उन्होंने भी जब काफ आया ऐन का जब की जो वजाहत की है, काफ गेसु, क्या बात है, काकुल, काफ गेसु, हाथ देहन, ये सब गेसु नहीं तो गेसुए मुस्तफा, दहने मुस्तफा, ये क्यों है? उसे मुकत्तात में नबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहते हैं ना तेरी सरकार ने लाता है रजा इसको सभी जो मेरा हाथ है और लाडला बेटा तेरा। गौसे पाक की, गौसे पाक को रब की मारिफत और गौसे पाक की मारिफत इमाम अहमद बताते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। जरा मोहब्बत से समझेंगे ना तब आप, और आप समझाइएगा भी तब ना। ये सालाना खाली फातिहा करेंगे तो नहीं, ये रोजाना वाले हैं। ये हम नहीं कहते कि रोजाना आप महफिल सजाइए, लेकिन कम से कम दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ऐसा तो अकीदा रख सकते ना। हमने जो ये वजीफा वाला कलाम पढ़ा है, आप बाद में वीडियो में लेकर के हर शेर को आप लिख लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा अहले सुन्नत का वजीफा अल मदद या गौसे पाक। जब ये शेर लिखा गया, आप कैसे कह सकते हैं सुन्नियों का है वजीफा? हाँ भाई गैर तो मानते ही नहीं। और मैं कुरान की जब आयतें दी तो आप, हाँ बहुत सारे लोग जितने भी है ना, तकरीबन 70 वहाबी लोग सुन्नी हुए। मैंने यही कहा भाई देखो मेरे पास दलील है, तेरे पास दलील नहीं, तू मांग मैं देता हूं, तू झगड़ा मत कर। और आप लोग भी झगड़ा मत कीजिए, आपका जो काम है वो आप कीजिए। आपका काम क्या है? उलमा तक पहुंचा देना। उलमा का काम क्या है? हिदायत की बात पेश करना। आप झगड़ा कर लेते हैं, तुम गौसे पाक नहीं मानते हो, तुम पकौड़े हो, तुम वो हो, तुम वो, अरे हो गया खत्म। ये फतवा लगाने को किसने कहा आपको बताइए? फिर जब आपको छोड़ करके मेरे पास फोन करते हैं, आपके मुरीद के पास, आपके चाहने वालों के पास मैं गया तो वो तो फतवा लगा दिए। अब उस वक्त क्या बोलो, क्या फतवा लगाए? तो वहां भी अरे तो हो गए वहां भी आप, अब क्या बोलना? अब अहले अकीदत को भी बचाना है। हो गया आप वहां भी हो क्या? नहीं तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं हो तो टेंशन मत लो। जैसे मुझे कोई सुन्नी कहता तो मैं शान से कहता अल्हम्दुलिल्लाह। आप हो दो ही है ना, वो सुन्नी हो गई या वहां भी हो गए? सुन्नी हो आप? नहीं तो फिर तो ऑटोमेटिक हो। अब बोलने की क्या जरूरत है? मैं नहीं खाता, तो आपको खाने कौन कह रहा? पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हिलता। ये तो गौसे पाक के मानने वालों का हाथ है जो यहां से वहां तक जा रहा है। अल्लाह खिला रहा है यार, अल्लाह पिला रहा है। तुम बस अल्लाह से मांगो, तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। तो बाटा के यहां क्यों जाते हो जूता खरीदने के? मांगो ना अल्लाह से। खाली मिस एक्सप्लेनेशन के शिकार हो आप, मिस गाइडिंग के शिकार हो आप मानो, मान के तो देखो यार। देख करके अबू जहल वगैरह नहीं मान सका, वैसी थिंकिंग रखता था। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं आप, सहाबा अहले बैत के चाहने वाले हैं आप। आपके अंदर राफजियत ना हो, आपके अंदर खारजियत ना हो, आपके अंदर सुन्नियत हो। और सुन्नियत यह है कि अल्लाह और रसूल ने जिसको मानने कहा है, बल्कि जिसको मानने कहा है हर एक को मानिए आप। उसमें आप अपनी थिंकिंग से डिवाइड नहीं कर सकते। मुझे बताइए हजरते बिलाल हबशी किस कबीले के हैं? कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हैं? सैयद हैं, कुरैश हैं, हब्श से ताल्लुक रखते हैं। हजरत सलमान फारसी, लफ्ज फारसी ही देखिए, पैरस के हैं, अरबी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम गैर सहाबी उन तमाम करसियों, सादात, मशाइख गैर सहाबी से अफजल है। इमाम शाफी सैयद हैं, इमाम शाफी सैयद हैं, इमाम आजम सैयद नहीं है। जुमले पे गौर कर रहे हो? इमाम शाफी सैयद है, मगर इमाम शाफी जब इमाम आजम की बारगाह में जाते हैं तो आप फतावा शामी का मुकद्दमा पढ़िए, आशाश करेंगे आप। रफ़े यदैन का दर्स देने वाले इमाम शाफी जब वहां जाते हैं तो रफ़े यदैन नहीं करते। इमाम आजम के अदब में 2 रकात जब नफल पढ़ते हैं तो उन्हीं के तरीके पर पढ़ करके उनकी कब्र अनवर के वसीले से दुआ करते हैं।
قبیلے والے بعد میں ہیں, نبی والے پہلے ہیں. ہم اہل توحید, اہل قرآن, اہل رسالت, یہ ہمارا عنوان ہے پہلے. اس بنیاد پر ہماری ریئلٹی ہے. ورنہ مجھے بتاؤ, قریش خاندان سب سے اعلیٰ خاندان ہے کہ نہیں؟ سب سے اعلیٰ خاندان آج تک, صبح قیامت تک, اس سے افضل قریش سے افضل کوئی نہیں. اس لیے ابھی آپ میلاد النبی میں ایک حدیث سنے ہوں گے کہ سب سے اہم قبیلہ قریش ہے اور میں اسی سے پیدا ہوا ہوں, میں اسی میں آیا ہوں. سنے ہوں گے سب سے اعلیٰ قبیلہ قریش ہے. مسلمانوں دھیان رکھو, تم خارجی مت بنو, تم رافضی مت بنو, تم سنی بنو, سنی ریئلٹی کے ساتھ بنو, نہ ادھر نہ ادھر, بیچ میں رہو. الحمدللہ حق و باطل کی پہچان بنو. آپ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اس کو سمجھو. آپ میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں, قریش سب سے اعلیٰ نسب رکھتا, قریش سب سے اعلیٰ, یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے اور خاندان کے ہیں. مگر مجھے بتاؤ, کتاب پڑھتے ہو آپ, کفار قریش, یہ لفظ پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ یہ لفظ کفار قریش بولنے سے پہلے کانپ کیوں نہیں گیا آپ کا اور ہمارا ہاتھ پاؤں؟ جب قبیلے کی بنیاد پر عظمت, جب قبیلے کی بنیاد پر عظمت تقسیم ہو رہی ہے, جب قبیلے کی بنیاد پر عظمت تقسیم, فضیلت تقسیم ہو رہی ہے, بالخصوص آج تمام لوگ اسی طرح کر رہے ہیں کہ میں تمہیں معلوم ہے میں کس کا بیٹا ہوں, تو سوال یہ ہے, قریش سے اعلیٰ خاندان کسی کا نہیں ہے, قریش سے اعلیٰ خاندان کسی کا نہیں ہے, لیکن پھر بھی قریش کے ساتھ یہ کفار کی ایڈیٹنگ کیوں؟ اور جب ایڈیٹنگ کفار کی ہے تو کیا قریش جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ ظاہر ہے جب کفار قریش کا عنوان ہے تو جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ کفار جنت میں تو نہیں جائیں گے. معلوم یہ ہوا قبیلے اور خاندان یہ آئیڈینٹی اور تعارف کے لیے تو ہے, جنت کے لیے مصطفیٰ ضروری ہے, جنت کے لیے توحید و رسالت ضروری ہے, جنت کے لیے صحابہ کا معیار ضروری ہے, جنت کے لیے اہل بیت کی ریئلٹی ضروری ہے, جنت کے لیے قرآن ضروری ہے, جنت کے لیے ایمان ضروری ہے, جنت کے لیے شریعت ضروری ہے. قبیلے بعد میں قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. ہم نے تمہارے لیے یہ شعبے بنائے, قبیلے بنائے, مگر اس لیے نہیں بنائے کہ تم جنت میں جاؤ. قرآن کہتا لتعارفوا, تاکہ تم آپس میں متعارف ہو سکو, تمہاری آئیڈینٹی ہو سکے, بس تمہاری پہچان ہو سکے. بس بلال کی پہچان حبش سے ہے, لیکن وہ مقام صحابیت سے ملی ہے انہیں. ابو بکر صدیق کی پہچان بے شک قریش سے, عرب سے ہے, نبی کے سسر ہیں, بے شک ہیں, لیکن افضلیت کا عنوان مصطفیٰ ہے. افضل البشر بعد الانبیاء نے انہیں قبیلہ نے نہیں دیا, مصطفیٰ نے دیا ہے. اس لیے افضلیت کا راز محمد ہے, افضلیت کی وجہ محمد ہے, ایمان ہے, جان ایمان ہے, شان ایمان ہے. آپ میں نہ کرو. آپ بتاؤ میرا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ آپ بھی تو انسان ہو. مجھ سے کیوں مسافہ کے لیے تڑپتے ہو؟ آپ بھی تو ہو. اس لیے نہیں کہ میرے پاس 2 ہاتھ ہے, میرے پاس 2 پاؤں ہیں, بلکہ اس لیے کہ میرے سینے میں عشق رسول ہے, میرے سینے میں قرآن ہے, میرے سینے میں حدیث ہے, میں وارث نبی ہوں. اس نسبت کی بنیاد پر آپ مجھے عزت دیتے ہو. اور یہ نہ ہو تو میں بھی آپ کی طرح ہوں, بلا تشبیہ. ہم نے 1400 سال کے بعد نبی کو اپنے سینے میں عشق کا محور رکھا, بنایا, عزت ہونے لگی. صحابہ کو دیکھ کر, چھو کر, پکڑ کر کے مصطفیٰ کو چاہا ہے. اہل بیت کی جو اصول ہے, علی, فاطمہ, حسن, حسین, وہ تو دیکھے, کھیلے, مانے, بیت کیے, ان کا مقام کیا ہوگا؟ تم اس طرح سے جملے کستے ہو. امیر معاویہ پر معاذ اللہ, ابو سفیان پر معاذ اللہ, ہند پر معاذ اللہ. ارے کم سے کم اتنا تو سوچتے کہ نبی سے زیادہ روئے زمین پر اللہ نے کسی کو زیادہ جاننے والا پیدا ہی نہیں کیا. وہ عالم مکان وما یقین ہے, تھا کیا, ہوگا کیا, ہونے والا کیا ہے, سب معلوم ہے مصطفیٰ کو. اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب معلوم ہے نا, پھر ابو سفیان کو سسر کیوں بنایا, امیر معاویہ کو سالہ کیوں بنایا؟ ذرا سمجھیے اس بات کو. اور جب بنا لیا تو سب سے وہ افضل ہے,
تو उनकी थिंकिंग सबसे अफजल, उनका सेंस सबसे अफजल, उनका इल्म सबसे अफजल, उनका सब कुछ सबसे अफजल। बल्कि उनको मानोगे तो ईमान है और नहीं मानोगे तो बेईमानी है। आप समझ रहे हैं ना? जब उन्होंने बना लिया दी एंड, पूरा सब क्लोज, नबी आपने बना लिया, खत्म। हमने तो अबू जहल को नहीं माना, क्यों? इसलिए कि वो आपका मुनकिर है, और बेटे को मान लिया इसलिए कि वो आपका सहाबी है। इकरमा को हमने मान लिया, बेटा है अबू जहल का, हमने मान लिया। तो मानने का पैमाना मुस्तफा है, मानने का पैमाना बाप बेटा बेटी नहीं। ये निस्बतें अगर दायरे नबूवत में हो, दायरे तस्दीक रिसालत में हो, तब जाकर के वो देखे जाएंगे कि सोने पे सुहागा। ये है सब नूरुन अला नूर, ये उन्वान देंगे। जो सैयद हैं, साहिब तकवा हैं, जो मशाइख हैं, साहिब तकवा हैं, इल्म वाले, ईमान वाले, मोहब्बत वाले, इश्क वाले, डिवाइड वाले नहीं। ना अली को, ध्यान दीजिएगा, ना अली को, ना आयशा को, ना मीर मुआविया को, ना हसन को, बल्कि सबको सहाबी का सबको पिलाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो किसी एतबार से कहीं पर भी रहे, हमारे सर के ताज हैं, हमारे सर के ताज हैं। इसीलिए आज ये गौसुल वरा का जो पैगाम है इस छोटी सी नशिस्त में, ये सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। आपने सबसे बड़े खुदा और खल्क में सबसे बड़े रसूल, वलियों में सबसे बड़े वली, इसको मानते हैं आप। कसम खुदा की, हम आप क्या वाकई जो अभी के वली हैं, वाकई कह रहा हूं, जो वली हैं, ये चलते फिरते की बात नहीं कर रहा हूं। वली उस खुशबू का नाम है यार। क्या आप इत्र लगा के आए तो बोलना नहीं पड़ेगा एक बार भाई महक आ रही कि नहीं आ रही। ये कुव्वत शामा अल्लाह पाक ने दी है, ऑटोमेटिक नाक में आ जाती है। वली उसी खुशबू का नाम है। आप जबरदस्ती कदम में मत गिराइए। अल्लाह पाक का वादा है जो वली होगा हम उसके कदम में डाल देंगे मखलूक को। आप मैं करोगे तो कोई नहीं झुकेगा। आप खुदा खुदा करो सब झुक जाएगा। मैं की कुर्बानी ही वलायत है, मैं का खात्मा ही वलायत है। मैं का खात्मा होगा तब ना तनासिल्ला होगे। मैं कौन हो कुछ नहीं हो तुम अगर मुस्तफा का मेयार नहीं है। क्या तुमने नहीं सुना सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, बेहतरीन आइडियल रसूलुल्लाह में है, बेहतरीन आइडियल रसूलुल्लाह में है। और वो रसूल फरमाते हैं मेरी भी सुन्नत, मेरा भी तरीका, और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन का भी तरीका। मेरे सहाबा को बिलीव करो, अहले बैत से प्यार करो। प्यार करने और कराने वाले तनकीद का दर्स नहीं देते, तनकीद का दर्स नहीं देते, तस्दीक का दर्स देते हैं, तायीद का दर्स देते हैं। तुम क्या जानो मसलक, इमाम अहले सुन्नत का मसलक सुनो। सैयद अगर फासिक भी हो तो ताजीम वाजिब है, इसलिए नहीं कि वो फासिक है बल्कि इसलिए कि खून मुस्तफा है। तुम बदनाम करते हो यार इमाम अहमद रजा को, तुम मसलक को बदनाम करते हो। और माफ करें हमारे मौलवी, चीख पुकार का नाम मसलक नहीं है, तौहीद और रिसालत की रियलिटी का नाम मसलक है। मुजद्दिद यूं ही नहीं, जिस तरह नबी को अल्लाह ताला भेजता सेम वही लफ्ज है, हालांकि कोई नबी नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सही अबू दाऊद की हदीस पाक है, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा यबअसु, बेशक इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला हर 100 साल के सिरे पर खात्मा पर एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो दीन में मुर्दगी को खत्म करके न्यू उन्वान देगा, तजदीद का उन्वान देगा। अल्लाह ने चुना है इमाम अहमद रजा को। जरा आईना तो मोहब्बत का लाओ, आईना तो तौहीद का लाओ। तुम हमें देख करके मसलक को पहचानते हो, हमें देख करके अहमद रजा को पहचानते हो। 1400 किताब को सिर्फ पढ़ लो, कसम खुदा की आशिक़े रसूल बन जाओगे। किताब का नाम पढ़ लो। मगर ए मुसलमान और ए मसलक के नारे भी लगाने वालों, जरा मसलक को प्रमोट करो, लफ्ज़े मसलक को प्रमोट मत करो। जुमले पे गौर करें आप, लफ्ज़े मसलक को प्रमोट मत करो, मसलक को प्रमोट करो। मसलक क्या है इमाम अहमद रजा पूछो, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर वाला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये प्रमोट करो, और ये ऑटोमेटिक मसलक आला हजरत है, ये ऑटोमेटिक मसलक आला हजरत। बस कहने ये जा रहा था, हाँ वो गौसे पाक को समझिए, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी पैगाम के हवाले से बहुत सारी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अगर कोई आपके जहन में बात आए तो आप अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक तदरीसी फिक्र है हमारी। तवज्जो से सुने, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सूरह बकरा की फर्स्ट आयत करीमा अलिफ लाम मीम के हवाले से फरमाते, अलिफ लाम अय्युहल इंसानुल कामिल लाइक लिखिलाफतना मुलाजिम लिस्तिक्शाफ असरार रुबूयतना कमा इला आखिरी। जब इसका तर्जुमा आप सुन लिए कि ए इंसान कामिल, ए हमारी खिलाफत के लायक है, ये ए कौन है? ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पीराने पीर जब नबी तक पहुंचाने का उन्वान दे रहे हैं, तो आज का कोई पीर कैसे हो सकता है जो अपने तक जीवित रखे मुरीद को? जरा समझिए इस जुमले को। हमारे कम से कम 300-400-500 से ज्यादा मुरीद हो गए होंगे, लेकिन एक मुरीद करने के बाद एक ही जुमला कहता हूं, आप मुझसे नहीं मिलोगे कसम खुदा के मैं खुश होऊंगा, लेकिन अल्लाह रसूल का दामन कभी नहीं छोड़ना। जो पीर साहब खुदा और रसूल तक न पहुंचा सके वो पीर कैसा है? पीराने पीर देखिए क्या कह रहे हैं, ए इंसान कामिल। अब ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा ना कि खुदा किसे इंसान कामिल कह रहा है? वो इंसान कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जानते हैं इससे क्या अकीदा दे रहे हैं गौसे पाक? आदम से लेकर के ईसा तक नबियों के मोजज़ात देखने वालों, ईसा उब्रिउल अकमह वल अबरसा वहबिल मौता बिइज़्निल्लाह, मादरजात अंधे को शिफा दे दे, कोढ़ को ठीक कर दे, मरे हुए को जिंदगी दे दे। इतनी शान देखा, मानने वालों ने कहा है ये मौत हयात, अरे ये तो अल्लाह की शान है, इसलिए ईसा अल्लाह है, ईसा अल्लाह है। जरा गौसियत समझिए, मारिफत रब्बानी समझिए, अब्दुल कादिर की कादरियत को समझिए। दिगर क्रिश्चियनों ने, ईसाइयों ने, दिगर नबियों के मानने वालों ने कुदरत देख करके, मोजज़ा देख करके, करामत देख करके नबियों को, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया मोजज़ात देख करके। मोहम्मद अरबी तो ईसा से भी अफजल है, आप समझिए, ईसा से भी अफजल है, उज़ैर अलैहिस्सलाम से भी अफजल है, यहां तक कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबियों से अफजल हैं। गौसे पाक ने ध्यान दिया, खबरदार, अफजलियत का मेयार सनदवार नहीं है, अफजलियत का मेयार खल्क ही है, खालिक तो मुकम्मल खालिक ही है, मखलूक में कोई खालिक का पैमाना नहीं रखता। अय्युहल इंसानुल कामिल, मोहम्मद कितनी भी आजमत रखे मगर वो इंसान है, मगर वो इंसान है। आला हजरत इसी को कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इंसान बोल भी रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं? इंसान नहीं। क्या बात है, इंसान की नफी भी हो रही है और इंसान का सबूत भी हो रहा है। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अय्युहल इंसानुल कामिल, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। ईमान ये कहता है मेरी जान है। क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? दो बात खासतौर से आज की गुफ्तगू का मैं, एक तो गौसे पाक को समझे हैं आप। गौसे पाक ये 11वीं, नजर न्याज, ये फातिहा, ये सब तो आप खाते हैं भैया। गौसे पाक के लिए क्या करें आप तो लोगों के लिए करें ना। लोग खा रहे हैं ना, आप खाए हैं, उनके लिए क्या करें? अगर आप कहते हैं सवाब पहुंचाए, हिम्मत है गौसे पाक को? देखा है अपने आप को कि तुम कह सको कि अल्लाह सवाब मेरी तरफ से पहुंचा दे? नहीं। हाँ, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनके दर्जे बुलंद करेगा अगर आपकी नियाज, और बेशक नियाज कबूल हुई होगी। आपने ये सब अपने लिए किया है, सवाब आपको रिटर्न हुआ है। वो गौसे पाक हैं, उनको सवाब नहीं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं उनके। हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर हो रहा, सवाब आपको मिला है, अजमतें आपकी बढ़ी हैं।
उनके लिए अगर आपको करना है ना तो अब उनकी मानिए, उनके लिए करना है उनकी मानिए। आप कितनी भी थकान हो याद कर लीजिएगा, तीर बरसते रहते थे, तलवारें चलती रहती थी, ऐसे आलम में भी सहाबा किराम ने नमाजें नहीं छोड़ी हैं। कुरूप लगा देते, 50 हैं तो 25 को कहते थे तुम दिफा करो, हम पढ़ लेते हैं नमाज। इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइक वलतअति ताइफ़तुन उख़रा। पारा नंबर 5 में है कि आधा लोग जो है ना डिफेंस के लिए रहे और आधे नमाज पढ़ ले। जंग के मैदान में नहीं छोड़ा। कौन जो कामयाब है, मग़फ़िरत वाले हैं, अजर अज़ीम वाले हैं, रज़ा वाले हैं, रब का फैज़ान पाने वाले डायरेक्ट है, नहीं छोड़ा। यही पैगाम है। कैसे भी हालात आ जाएं, रात भर तुम वलीमा में थके क्यों न रहो, कभी फज्र न छोड़ना। उस दिन तो और खास तौर से पढ़ना ताकि अल्लाह को आपकी थकान और पसंद आए। मेरे बंदे परेशान थे, तकलीफ में थे, फिर भी तूने मुझे पुकारा, अब तू पुकार, क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। आप सुबह में कहते हो रात भर में वलीमा में था इसलिए सुबह नहीं उठ सका। नहीं, ये मुरीदी का उन्वान नहीं है। गौसे पाक की मुरीदी का ये उन्वान नहीं है। कसम खुदा की, ईमान और तकवा ये मेयारे विलायत है। और गौसे पाक की पूरी उम्र आप देख लें, वो हासिल करने वाली भी वलायत आपको हासिल है और अता वाली भी, पैदाइशी वाली भी है। मां की बेअदबी ना कीजिए। गौसे पाक भी एक मां के बेटे हैं जो ऐसे बेटे हैं कि मादरजाद वली है। कैसा पेट मां का है, सुभान अल्लाह, वली को जन्म दे रहे हैं, वाह सुभान अल्लाह। मां की बेअदबी ना कीजिए। और आप लोग बिलखुसूस जो पैगाम आज के हिसाब से दे रहा हूं, औलाद के सामने, बीवी के सामने मोबाइल देखना बंद कीजिए। अभी एक दिन के लिए आप अजमेर चले जाते हो, सुबह शाम फोन करते हो, कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, वीडियो कॉलिंग, और घर में मौजूद रहते हो तो बैठकर बात नहीं कर सकते। सोफा पे अलग बेटी देख रही है वीडियो, वो सोफा पे अलग दुल्हन देख रही है, तुम अलग देख रहे हो। ये शहरे खामोशा कब्रिस्तान बना दिया घर को। घर के मिंबर से ज्यादा मोबाइल नजर आ रहे हैं तुम्हारे घरों में। मोबाइल को जरूरत समझो यार। मोबाइल तुम्हारी जिंदगी क्यों बन गई? जरूरत के वक्त उसको इस्तेमाल करो। जिंदगी क्यों बन गई है? मां अगर मौजूद है तो बात कर ले, नहीं मिलेगा मौका। पता नहीं 8 लाख 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा तुम अपनी जिंदगी में कभी जमा कर सको या नहीं। बल्कि और भी महंगाई आने वाली है, 20 लाख भी पहुंच जाए हज के खर्च करने में। लेकिन नबी ने पहले ही तुम्हें कह दिया था, ए बेटे, ए मां के बेटे सुन, अगर तुम्हें हज मकबूल चाहिए तो 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च करने के बाद पता नहीं मकबूल हज का सवाब तुम्हें मिलेगा या नहीं। बस दुआ करोगे, हो सकता है कबूल हो या ना हो। लेकिन सुनो, अगर मां की कदर करोगे, नजरे रहमत से मां को देखोगे, मकबूल हज का सवाब मिलेगा। नबी ने पहले ही तुम्हें बता दिया था, मां की तरफ नजर रहमत से देखने वाला बेटा मकबूल हज का मुस्तहक है। मां से बात कर लो अगर मौजूद है तो, बीवी से बात करो, नबी की सुन्नत है। इसीलिए अभी कहा मैंने सलाम करना। तुम मर्द हो, काहे का मर्द? नबी की सुन्नत अगर तुम है ना तुम्हारे अंदर, बेहतरीन मर्द हो। नबी की सुन्नत है आयशा को सलाम करना। नबी से भी बड़ा मामला, बीवी को सलाम करो। क्या नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी सलामत रहे, बच्चे सलामत रहे? घर दाखिल होते ही सलाम करो। कोई जवाब दे या ना दे, मुस्तफा जवाब देंगे। सुभान अल्लाह, रूहे मोहम्मदी जवाब। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसलिए गौसुल वरा का ये मौसलाधार पैगाम और रहमत की बारिश अल्हम्दुलिल्लाह गवाह हो जाए, यकीनन कबूल हुई। और आज के फजर की नमाज, कसम खुदा की, बोलूंगा नहीं, गुजारिश नहीं करूंगा, ये अल्लाह पाक का हुक्म है, हुक्म में गुजारिश नहीं है। पढ़ना तो पढ़ना, वलीमा में गुजारिश कर सकता हूं, प्लीज आइएगा। निकाह में गुजारिश कर सकता हूं, प्लीज आइएगा। ये सब सुन्नत मुस्तहब वगैरह की चीज। फर्ज में गुजारिश और इंशाअल्लाह नहीं। गौसे पाक का करम हुआ है तो इस करम को बचाओ। मैं जब हज को गया था 2005 में, आखिरी बात कह करके, फैजान करम नेमत मिल गई आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। नेमत मिलना आसान है, बचाना आसान नहीं है।
जरा जुमले सुनिए। 300 हमारे साथ हुज्जाज किराम, बेंगलोर से गया था मैं, उनके सामने भी यही तकरीर किया था मिना की जगह पे। नेमत मिलना आसान है, बचाना आसान नहीं है। अब क्या मतलब है इसका? फर्ज कीजिए आपके पास मोबाइल है, कितना प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आप देखिए बारिश हो रही है ना, पहले से सोच रहे होंगे कौन से इसमें रखूं कि पानी से बचे वो, अरे पन्नी है क्या, पन्नी है क्या, पहले से सोच रहे होंगे। देख रहे हैं आप, एक नेमत है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप बस। तो नेमत मिलना आसान है, बचाना आसान नहीं, बचाना बड़ा मुश्किल है। उसके एक मिसाल ऐसे दिया, हज की नेमत मिल गई है, चलो कबूल भी हो गई, मां के पेट की तरह एकदम निकल गए आप, लेकिन आप जा करके शैतान जब वेलकम करेगा, कहेगा रिश्वत ले लो, कहेगा चुगलखोरी कर दो, ये सारी चीजें जब तक रनिंग ऑफ लाइफ मौजूद है, जिंदगी मौजूद है, तो बहकाने वाला मौजूद है। अगर आप बहक गए तो समझ जाइए कि नेमत तो अल्लाह ने दिया था, बचा नहीं सके आप। और उसकी मिसाल प्रैक्टिकली तौर पर आप सुनिए। जब मदीना से हमारी फ्लाइट चली तो एक औरत ने पूरे जिस्म में 7-8 20 तोला सोना करीब पहने, क्योंकि वहां कम सोना लाने नहीं देते हैं, लिमिटेड देते, तो वो पहन करके जितना ला सकते हो, पहनने में कौन टोकेगा, कौन देखेगा, पहन ली थी। लेकिन जब जैसे ही चढ़ गई तो वो खोल दिए, खोल करके उसमें बांध ली थी, और बांध ली ना, कुछ देर चली और फिर जब है शायद इस्तिंजा करने या कुछ करने के लिए उठी वो सोना का वो पूरा गिर गया, 20 तोला या कितना तोला सोना गिर गया। उस वक्त भी खड़े होकर एक जुमला कहा था, परेशान मत हो, मैंने बहुत पहले ही कहा था, नेमत मिलना आसान है, बचाना आसान नहीं है। देखा, सोने की शक्ल में तुम्हें नेमत मिली थी, बचा ना सकी, बिला तशबीह ही समझो, हज मकबूल तुम्हें मिला है, खुदा की मग़फ़िरत मिली है तुम्हें, अल्लाह की रसूल की शफाअत मिली है तुम्हें, बड़े बड़े तमगे मिले हैं तुम्हें, फैज़ व बरक़ात तुम ले जा रहे हो, ले जा रही हो, इसे बचाओ। बचाएं कैसे? तक़वा का दामन न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, गाली गलौज छोड़ देना, हसद की ना छोड़ देना, बुराइयों को छोड़ देना, अम्र बिल मारूफ के हामिल रहना, नहीं अनिल मुनकर के हामिल रहना। ये जब रखोगे तो नेमत रब ने दिया है, बचाया तूने, तो अब नेमत का इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। अब कैटेगरी बढ़ाएगा अल्लाह ताला आपको, कब्र ही से हश्र तक, फिर जन्नत के हुजूर तक की कोई राहें आपके लिए मुश्किल नहीं, परेशान कुन नहीं होगी। ये गौसे पाक का पैगाम था। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी नशिस्त को आस्ताने वली के सबको तुफैल में कबूल फरमा ले। हजरत ज़करिया के वसीले से मौला जिस तरह तूने उनकी दुआ कबूल फरमाई, मौला जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार है वो रोजगारी अता कर दे, या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं मौला उनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। और उसे जमा इमाम जमा के सबको दुफैल में परवरदिगार आलम हम सबको वो दे दे मौला जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर हो और मरने के बाद भी बेहतर हो मौला। जब तक जिंदा रख अच्छा रख मौला, जब मौत अता कर तो ईमान पर मौत देना मौला। कभी भी मौला बदअकीदगी के कुर्ब, बदअकीदगी की कुर्बत, बदअकीदगी की सोहबत न देना मौला। हमारी नस्लों को भी सुन्नी सही अकीदा हमेशा रखना मौला। औलिया अल्लाह की मोहब्बत, उनकी अकीदत और उनके मसलक और मिशन पर हमेशा चलाना। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।